Jai Hind. I've started the recording. Thank you. Thank you. Thank you. As an activity of Shantanurao Kirloskar chair, we are organizing this webinar specifically organized for our soldier entrepreneurs. So I welcome all the participants, and there are some dignitaries joined for this particular program. But before that, I request our Pro Vice Chancellor who has joined, will be joining, to be a chairman of this webinar. We are having Mr. Pradeep Bhargava, who is an industrialist and former president of Maratha Chamber of Commerce and Industries, Pune. We are also expecting Dr. Saili Gankar, who is a trainer in achievement motivation, and now she is a vice chancellor of DY Patil University. We also have Dr. Amar Krishna, Major General retired. Then Dr. Surbhi Jain, who is our professor and head of Department of Management Science, University of Pune. From QMTR, CEO Colonel Rahul Pali and Dean Colonel Vasant Balleva has also joined. I'm sure our group comprises of a lot of entrepreneurs. They are joined, and I expect a lot of students and a lot of friends have asked me to share the link. So we expect a good number today. A thought came to my mind. Last for 3 years, we have been conducting earlier offline seminars, and then for last 1.5 years on online webinar. And we invite normally entrepreneurs to address the group comprising of the people who are in the business and those who intend to start a business as a stimulus activity. Then I realized that my students from QMTI, a lot of them have become entrepreneurs. So I thought that why not invite them to understand what they are doing after their retirement. So इसलिए आज का ये कार्यक्रम बहुत विशेष है. उसके बारे में मैं अभी पहले थोड़ा सा QMTI में है, पुणे यूनिवर्सिटी क्या कर रही है इसके बारे में बताता हूँ. 2008 साल में मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, डीन था कुंभा का. तब मेरे मन में एक विचार आया कि QMTI अपने इतना नजदीक है, लेकिन हम QMTI के जवानों के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं. तो ये बात मैंने डॉक्टर नरेंद्र जादव, जो हमारे वाइस चांसलर थे उस टाइम, अभी वो सांसद है राज्यसभा के, उनसे बात कही और उन्होंने तुरंत मुझे अप्रूवल दिया. उसके बाद सुरभि जैन मैडम को पता है, हमने कुछ स्टूडेंट को इंडस्ट्री में भेजा. So we try to find out from the industry what they expect from ex-servicemen, especially, and even the disabled people. We all know that our soldiers, they retire at early age, around 40, and getting a job is a big problem. So I thought that we should give them an exposure in management, and that is how, after survey, we have designed a program, 12 months program, diploma in industrial administration and services management. And this is a special program of its kind because eligibility is 12th pass. And we have been conducting this particular program for last 13 years. The results are quite good. And one of the subject of this particular program is entrepreneurship development. Later on in year 2014, I got an opportunity. In fact, this opportunity was given by Lieutenant General Ashok Singh, the then Army Commander, Southern Command, to conduct 3 ADPs, Entrepreneurship Development Program, for about to retire soldiers of Southern Command. So me and my team, comprising of Dr. Surbhi Jain, who is a present head of department, and Dr. Rajesh Paulkar, we conducted a survey at Bombay Engineering Group. Then we went to Devlali at Artillery Center, and also 2 centers at Nagar. And we covered about more than 600 Jawans. We administered a questionnaire specifically designed for them in Roman Hindi. And we tried to find out what sort of strength they have, what sort of weaknesses, what they want to do in after retirement. And after doing the analysis, we have designed a program which is Entrepreneurship Development Program. We started in 2014
3 such programs were conducted initially, one for our disabled soldiers at QMTI and 2 programs for Southern Command at Rane Auditorium Bombay Engineering Group. That time this program was designed for 10 days and various topics we have covered, like how to enter, how to orient yourself to civil life, to marketing management, how to convert ideas into business, the business plan, how to take loan, financial management, shop act, and everything. In fact, we also taught them how to write a biodata and face the interview. I think some of my faculty members have joined, Mr. O. Both though, one is doing business plan, the other one converting ideas into business. And Gaurav already is there, who is the coordinator of this particular webinar. Surbhi Jain madam is also there. And over a period of time, the idea of this particular program is to inculcate confidence in this in our ex-servicemen and give them a feeling that Fauji also can become an entrepreneur. फौजी भी उद्यमी बन सकता है, ये मोटो लेके हमने उनके सामने काफी, मेरे ख्याल से बिलौडी से चितले ग्रुप के लोग आने वाले जो डेयरी फार्मिंग के बारे में बताते हैं. डॉक्टर कुलकर्णी has specifically asked me, and Mr. Chitale, who is the owner of Bilawdi Chitale Group, he is also joining. So उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं. तो ऐसा लगा कि why not cover them, because unless or until we bring them in front of our other group, other students, it is a good motivation for our students also. When Fauji can become an entrepreneur, and I'm very happy, all of them, and these are the only 6. Eventually, I will call one by one in every one or two in every seminar. And not only just webinar, we are now at department, myself and Dr. Surbhi Jain. We are planning to publish a book, or probably we may go for YouTube recording, and wherein we will give half an hour to 45 minutes per soldier entrepreneur. एक बात बहुत important, बहुत अहम है. हम, when I conduct class for these soldiers, I always tell them you have to forget your rank, because आपकी rank आपके यश के बीच में नहीं आए. Your rank should not be a hurdle in your success, and that is why I have not mentioned their ranks. I have mentioned Mr. in the program. With this particular introduction, we will follow the program. Now I request the first speaker of the day, Mr. Pritam Singh, who is from 9 Para Special Forces. मैं मेरे सिविलियन दोस्त को बताना चाहता हूँ, 9 पैरा एक बहुत ही तगड़ी पलटन है. 9 पैरा एंड 10 पैरा 1971 वॉर में बहुत तगड़ा काम किया था. तो ओवर टू यू प्रीतम. और मैं सभी स्पीकर्स को बोलना चाहता हूँ कि मैंने हर एक को 10-10 मिनट दिए. टाइम का थोड़ा सा पाबंदी है, 1-2 मिनट ज्यादा जाने से कोई बात नहीं, क्योंकि मैं बाकी के लोगों को भी इनवाइट करने वाला हूँ. प्रीतम, कैन यू हियर मी? शुरू करो प्रीतम, ऑल योर्स. आदरणीय केएस चौहान साहब, सीएम चितले साहब, सुरभि जैन मैम साहब, QMTI वाली साहब, अमर साहब, गोनकर साहब, विक्रम साहब गोखले, NS मराव साहब और गौरव साहब, तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि छोड़ने के बाद आज हम ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं. प्रीतम सिंह सर, आप कैमरा प्लीज ऑन कर सकते हैं. और गौरव, यस सर. I think we'll request all participants to mute their videos. Yes. And whenever I will invite a speaker, they will put on the video. Yes. And even speaker also. Okay? Yes. I'm muting mine. सर मेरी स्पीच तो आ रही है? तगड़ी, बहुत अच्छा. और QMTI के जो छात्र हैं उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार. मैं QMTI में DISM और इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग का कोर्स किया. वहाँ से हमारे
डीन साहब, सुरभि जी मैम साहब और गुप्ता साहब ने जो हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उसको हम अपने जीवन में आज कामयाबी हासिल कर रहे हैं। फर्स्ट में जब मैं पेंशन आने के बाद मैंने जो बिजनेस शुरू किया, फर्स्ट में मैंने मकान बनाया, बच्चों की 2 की शादी किया, उसके बाद मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, छोटे सा बिजनेस आलू और प्याज का। आगरा के अंदर जो आलू और प्याज बहुत ही मात्रा में आता है, आलू हमारे यहाँ बहुत मात्रा में होता है, प्याज नासिक और जो महाराष्ट्र से आती हैं उनको हम 10 किलोमीटर दूरी पर जा करके उनसे मिलाप करते ट्रकों वालों से, और उनसे मिलाप करके रेट तय करने के बाद मंडी से उसका मिलाप करते आड़तिया से। जब हमें पर केजी 50 पैसे। आपको वीडियो फोटो भी दिखा था सर, वीडियो आपको सामने। सर फोटो का प्रॉब्लम हो रहा है चलो इसमें। कोई बात नहीं, मैंने कंटिन्यू करो, आवाज सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। फोटो का साहब उधर से हो सकता है? नहीं हो सकता, आप बात करो, बाद में देखेंगे, टाइम मत। प्रीतम कंटिन्यू। जो स्टार्ट किया बिजनेस तो आलू और प्याज से शुरू किया, वहां जाकर के जब मंडी में हम बेचते थे तो ट्रक का सौदा करते थे, हमें आड़तिया से और दोनों के मिला के बीच का जो मार्जिन था पर केजी 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, इसमें बहुत सारा मार्जिन आता था, कभी 20,000, कभी 30,000, इस तरीके का। क्योंकि हेलो, उस मार्जिन से आगे जो पैसा एकत्रित हुआ और हमने एक प्लॉट बेचा 30 लाख का। इसके बाद स्कूल खुला, स्कूल खोलने के बाद हमने 1 साल उसको चलाया, फिर हमें ऐसा लगा कि हमें और आगे बढ़ना चाहिए, ये पैसा हमें जो इकट्ठा किया इससे और कुछ हम कर सकते। तो प्रिंटिंग प्रेस लगाया, 4 कलर डोमिनेट 745 सोनी प्रिंटर्स के नाम से भरतपुर के अंदर। उसमें काफी पैसा हमें मिला। बच्चों ने बोला हम शादी करेंगे, सब शादी करने के बाद हम नौकरी करेंगे। नौकरी में मैंने बोला भाई नौकरी क्यों करना, तुम इसी को करो, इसमें अच्छा मार्जिन, अच्छा पैसा मिल रहा है और तुम एक ओनर हो। उन्होंने बोला नहीं नौकरी करनी है। वो हमने हायर कर दिया। हायर करने के बाद दूसरे बिल्डिंग्स, प्लॉट्स, उसमें हमने पैसा इन्वेस्ट किया, प्लॉट खरीदते और बेचते। फिर हमने जमीन खरीदी और उस सब प्रॉपर्टी का काम करना शुरू किया, जिसमें 4 कॉलोनाइजर थे। अपने अपने सेपरेट प्लॉट्स लिए 1800 वर्ग गज का प्लॉट 4000 तक गया। 1 साल में उसको सेल किया और वो पैसा एकत्रित करके हमने बिल्डिंग्स बनाने के लिए प्रारूप रखा। बिल्डिंग्स में जो परेशानियां आई वो बहुत मुसीबत वाली थी, क्योंकि बिल्डर्स होता है वहां से पैसा लोन लेना, फिर लोन को चुकाना। मैंने वही बोला हम नहीं, हम तो जो पास है हमारे पास है उसको लगाएंगे और काम करेंगे। तो वहां से हमने ज्यादा हानि होने का संदेशा रहा, हम विड्रॉल हो गए। विड्रॉल होने के बाद बिजनेस में सोच समझ उनकी ये थी, किसी को रजिस्ट्री करना है, पूरे कागज, कन्वर्जन, ईमानदारी, वफादारी, सबके साथ अच्छा काम करना। आपका एक काम खराब करने से सारी बिजनेस ठप हो सकता है, ये चैलेंज थे। तो हमने बोला नहीं भाई ये हम नहीं करेंगे। हमने
वहां से फिर विड्रॉल किया, क्योंकि उसमें घाटे होने का बहुत ज्यादा अंदेशा था। उसमें तो माल आता है, वहां पर सुपरवाइजर वर्कर्स काम करते हैं, अब उनके ऊपर नजर रखना वो हमारे से असंभव था। एक आदमी काम कर रहा है, पैसे कितने आए, कितना सामान आया, उसका हिसाब थोड़ा गड़बड़ाने लगा। हमने बोला नहीं, हम नहीं करेंगे। हमने अपना पैसा निकाला और जो बचा हुआ पैसा था उसका बॉन्डेशन ले लिया कि आप हमें इतने दिन में पैसा वापस कर देंगे। वहां से हमने अभी ये सोचा है कि हाईवे कंपनियां हैं, उन हाईवे कंपनियों में जाकर के कंस्ट्रक्शन में काम करना। उसके अंदर मेरे NHI में एक दोस्त हैं नदीम करके, उन्होंने मेरे को बताया कि प्रीतम सिंह आप इसमें एक बार उतरिए। उसके बारे में अभी मैं काम कर रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ कि इसमें मेरे को क्या क्या करना है, क्योंकि इसमें पैसा बहुत इन्वेस्ट करने के बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। परंतु मैंने एक चैलेंज लिया है कि मैं इसमें उतरूंगा और करूंगा। चैलेंजेस बिजनेस में बहुत सारे आते हैं, ये चैलेंज है पैसे का। जब अपने पास पैसा है उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, अन्यथा कर्ज लेकर के। अगर पैसा लगाया है तो अपने पास इतना पैसा होना चाहिए कि उसको हम घाटा भी पड़े तो रिकवर कर सके। अगर सारा का सारा पैसा बिजनेस में लगा दिया तो आपके पास ऐसा वक्त भी आ सकता है कि आपके पास पैसा ना हो और बिजनेस ठप हो सकता है। तो मेरी जो बिजनेस करने जा रहे हैं तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा, जो कर रहे हैं वो मैं एडवाइस करूंगा कि बिजनेस को अच्छी सोच समझ से शुरू करना। ईमानदारी सबसे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क। ईमानदारी अगर नहीं है तो बिजनेस ठप हो सकती है। आपका नाम हर जगह अच्छाइयों में आना चाहिए। आपने आड़तिया से बात करनी है, हाँ प्रीतम सिंह बहुत ईमानदार आदमी है, उसको पैसे भेज दो, उसके सामान भेज दो, उसका पैसा आ जाएगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी। अगर आपने एक बार भी ऐसा काम कर दिया, किसी का पैसा रख लिया या पैसा नहीं पहुंचाया टाइम पर, तो उसमें आपकी गुडविल खराब हो सकती। तो मैं तो यही कहूंगा कि आधा पैसा बिजनेस में लगा करके आधा पैसा अपने पास रखना जरूरी है। वेरी गुड। इससे आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनको हम रिकवर कर सकें। कच्चा माल को पक्का करके पक्के माल को सप्लाई देना, वो हमें जानकारी, मार्केटिंग, हमारे जो काम कर रहे हुए मार्केटिंग जो हमने रखे हुए हैं उन पे हमें प्रेशर देना है, हमारी माल को सप्लाई होने के लिए उन्हें जगह बनानी, मार्केट में जाने के लिए। हमारी जो प्रेस थी उसमें कारण पहले फर्स्ट में यही आया कि माल बन गया और सप्लाई के लिए टाइम लगा। जब हम वहां से नेट के थ्रू सबको बताया हमारा रेट्स ये है, इतने रेट्स में हम इसको छाप रहे हैं और आगे इतना रेट्स देंगे, तो हमारे पास नेट के थ्रू हमने अकाउंट नंबर दिया, वो पैसे डालते, हम उनकी छपाई करते, बसों में भेजते। एटा, इटावा, मैनपुरी, जालौन, फरक्काबाद, ग्रावली, भरतपुर, ये हमारे मेन सिटी थे। प्रीतम 1 मिनट और। सर बढ़िया। सर मैं यही कहूंगा कि जो मेरी अरदास है, जो बिजनेस में उतर रहे हैं, मैंने बहुत परेशानियों के साथ इन पे खरा उतरा हूँ। और इन परेशानी क्या क्या आती हैं, सबसे पहले अपने जो नजदीकी, इनके पास पैसा है, इनसे पैसा कैसे लें, या कोई दोस्त होगा भाई पैसा है, पैसे को कैसे निकालें, क्योंकि हम फौज से कटअप हो जाते हैं, सिविल में आके काफी लोग चतुर और चालाक होते हैं। सिविलियन के साथ बड़ी रहमी से बात करनी है, और मेरा ये भी है कि फौज भी फौजी नहीं बताना। जब बिजनेस में उतरते हैं तो हम एक सिविलियन हैं,
अगर हमने फौजी बोला तो उनकी मानसिकता एक फौज के उस पर चली जाती है, करियर फौजी है, उस सोच को उनके उससे दूर रखना है। ठीक है पीतम, मेरे ख्याल से काफी आपने बात किया। थोड़ा इंटरप्ट करो क्योंकि मैं 9 मिनट के बाद हर एक को संदेशा दूंगा, हमें टाइम का कंस्टेंट है। आज के इस सेमिनार में विक्रम गोखले जी भी आए हैं, रिनोन्ड एक्टर और वेल विशर ऑफ क्यूएमटी। गोखले जी आपका स्वागत है। अभी मैं दरख्वास्त करता हूं कि संदीप लेंडे, संदीप गिव योर स्टोरी। हाँ, मैं एक 9 मिनट के बाद आपको वार्निंग दूंगा। कल आपने मुझे काफी बताया है संदीप। राइट सर। या थैंक यू प्रीतम सिंह, बाद में बात करेंगे। चलो स्टार्ट। जय हिंद ईच एंड एवरीवन। मैं हवलदार संदीप लेंडे, सेना आयुक्त कोर में 2003 में शामिल हुआ था। 18 साल सर्विस होने के बाद मैं अभी ऐसा जाना। संदीप थोड़ा आवाज आ नहीं रहा है, जरा आहिस्ता आहिस्ता बात कीजिए, आवाज नहीं आ रही ठीक। राइट सर। जय हिंद एवरीवन। मैं हवलदार संदीप लेंडे, सेना आयुक्त कोर में ईस्वीसन 2003 में शामिल हुआ। 18 साल सर्विस पूरी होने के बाद आज मैं कॉलेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट में पोस्टिंग हूँ। 2012 में यूनिट बैटल एफिशिएंसी टेस्ट के दौरान छोटी सी इंजरी हुई थी, उसमें 25 स्ट्रेचर्स का छोटा सा सर्जरी के बाद क्रिटिकल कंडीशन की वजह से सेम टांग का 2 साल के बाद रीऑपरेशन करना पड़ा क्रिटिकल कंडीशन के चलते। 2016 में मैंने क्यूएमटी में एडमिशन ले लिया। क्यूएमटी क्यून मेरी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में 1 महीने आने के बाद बहुत ही हम लोगों को बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिली। तो 1 महीने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि हम डिसेबल नहीं है, कि तब पता चला कि हम लोग डिसेबल नहीं है, तो डिफरेंट एबल सैनिक है। तो हमें ये महसूस हुआ मेरे को पर्सनली कि एक मछली को फिश टैंक या एक्वेरियम से निकाल कर जब नदी या तालाब में ना छोड़कर उसको समुद्र में जब सीधा छोड़ा जाता है, जब उसको जो सुकून मिलता है वो सुकून हम लोगों को उस टाइप की फीलिंग मेरे को हुई क्यूएमटी में आने के बाद। सन 2016-17 में मैंने कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्राम असिस्टेंट का कोर्स किया। वहाँ पर मैंने सिविल सर्विसेज, बैंकिंग, सेल टैक्स, अकाउंटिंग में डीपली जॉब की इंक्वायरी की। तब मुझे पता चला कि सिविल में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। नेक्स्ट ईयर मैंने 2017-18 में डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्विसेज मैनेजमेंट जो कि पुम्बा की तरफ से चलाए जाने वाला DISM कोर्स है। वहाँ पे मोस्ट ऑफ एक्स्ट्रा लेक्चरर्स रहते। टीचर ने जो भी पढ़ाया वो बुक वाली पढ़ाई, मेरे ख्याल से 20 to 10% ओनली 10% बुक वाली पढ़ाई थी। बाकी बची हुई 80 to 90% जो पढ़ाई थी रियल लाइफ के बारे में पढ़ाई चल रही थी। उसमें बताया गया कि हमें क्या करना चाहिए, अपनी क्या क्षमता है, आप क्या कर सकते हो। यहाँ पर एकदम से ग्राउंड लेवल में जाकर पढ़ाई की। सबसे मेन हमें ये बताया कि आप सपना देखो और वो सपने के पीछे भागो। तो वो सबसे बड़ी बात वहाँ पे हम लोगों ने सीखी। वहाँ पर को अपनी रैंक को बुलाकर हम सैनिक हैं, फिर भी हम लोग अच्छे उद्यमी बन सकते हैं। तो लाइव एक्सपीरियंस दिखाए, जगह जगह पर विजिट करवाई, वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ पर मेन चीज ये है कि यहाँ पर डॉक्टर कैप्टन संदीप आपका आवाज कट रहा है। संदीप गौरव जरा बघ रे काय तिकडे सर मी आलोय. हो सर, थँक्यू. आणि किती लोकांचं झालं? आता एकच झालं, प्रीतम सिंगचं झालं. संदीप लेंडे सेकंड स्पीकर आहे. आणि आपल्याला सर शेवटी मी आपल्याला विनंती केली की चेअरमन व्हा म्हणून. नाही, आय वॉज इन दी वन डिफेन्स स्टडीचा मीटिंग हे होतं. गौरव काय झालं बरं संदीपचा, नंतर घेऊया. संदीप सरांचा आवाज थोडा ब्रेक होतोय. ओके, मग संदीपला म्हणाला होल्ड ऑन ठेव, वी विल गो टू द नेक्स्ट स्पीकर. यस सर, यस सर, यस सर. संदीप यार आप होल्ड ऑन करो, बाद में आपको बुलाता हूँ.
हमारे प्रो वाइस चांसलर साहब ज्वाइन हुए हैं, वो अभी इस वेबिनार के चेयरमैन है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इस वेबिनार के बारे में मैंने अपने सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे साहब को फ्लायर भेजा था और उन्होंने इसका कॉग्निजेंस लेके मेरे ख्याल से आज जो ब्रिगेडियर भारद्वाज साहब आए हैं और जनु साहब आए हैं, अटेंड कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और मैं बड़ा खुश हूँ कि जनु साहब ने भी इसका कॉग्निजेंस लिया है। तो अपने नेक्स्ट स्पीकर है अमरजीत सिंह। अमरजीत, Yes, sir. या प्लीज स्टार्ट Hi, करो। everyone. Hi, everyone. Good evening to all. Respected Chitle sir, Surbi ma'am, CEO QMTI Bali sir, Dr. Amar, Dr. Shyali Kankar, Mr. Vikram Gokhale, Mr. Pradeep Bhargava, Professor N.S. Umrani, Major General A.H. Chauhan sir, Brigadier Bhatwa sir. अमर स्टेट बिजनेस पे आ जाओ, सबको मिल Okay. गया संदेशा। मैं 20 लांसर आर्मर्ड कोर से 20 साल सर्विस करने के बाद जब मैं उससे पहले रिटायर होने से पहले क्यूएमटीए में ज्वाइन किया था, तो मैं एज ए बैटल कैजुअलिटी था। मेरे मिलिटेंसी इनकाउंटर में गन शॉट हुआ था लेफ्ट थाई में। तो 13-14 में 1 साल DISM कोर्स करने के बाद हमारे को बहुत मतलब एक डिफरेंट तरह की नॉलेज हमारे को मिली, जो एक आर्मी पर्सन को इतनी नॉलेज बाहर बिजनेस की नहीं होती। और उसके बाद मैंने ऑन द जॉब ट्रेनिंग किया 3 साल WNS मगरपट्टा, एमडॉक्स और फाइजर में। और वहां पे मैंने देखा मैं बैटल कैजुअलिटी होने के कारण जैसे टांग में प्रॉब्लम है, तो मेरे को अच्छा लगा जो उधर कैफेटेरिया में सर्विस देते हैं IT कंपनी में, तो कैंटीन चलाते हैं, तो वो मैंने डिसाइड किया काम करना। तो उसके बाद रिटायर होने के बाद फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो मेरे ऑलरेडी 2 कैंटीन चल रही थी। एक नगर रोड पे ई स्पेस है, उसमें 4000 से 5000 जॉब करते हैं लोग। तो उसके मेरी एक सिंगल कैंटीन थी, एक मेरी दूसरी कंपनी में थी। तो उसमें काफी चीजें मेरे को सीखने के मौका मिला। और उसके बाद मैंने ट्राई किया था, क्योंकि जैसा मैंने एक चीज पे कंसंट्रेशन करना स्टार्ट किया, क्योंकि जैसे इधर महाराष्ट्र में बड़ा पाव फेमस है, तो जो पंजाबी स्टाइल का समोसा है वो इधर एक्चुअली जो है वो नहीं मिलता, जो प्रॉपर जो है चीज। तो उस पे मैंने रिसर्च करके उसको स्टार्ट किया। तो फिर मैं PVR सिनेमा में उनको 25 to 28,000 पर मंथ रिक्वायरमेंट थी। और भी मतलब मेरा डेली का 3000 तक जो मेरा डेली ऑर्डर का जा रहा था। तो बीच में फिर ये लॉकडाउन होने की वजह से सारा बिजनेस बंद हो गया। तो उसके बाद फिर मैं मिलिट्री टू कॉर्पोरेट की हेल्प से अभी मैं एज ए सीनियर एनालिसिस्ट नॉर्दर्न ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक है खराड़ी में, उसके अंदर मैं जॉब कर रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू अमरजीत सिंह जी। अमरजीत, बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन के वजह से आपको बिजनेस बंद करना पड़ा, कोई बात नहीं, आज ना कल पेंडेमिक से बाहर आएंगे। आप एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर के जीवन में ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन छोड़ने का नहीं, बना रहने का है, और एक दिन आप और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो जाएंगे। वेरी गुड। मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ कुशवाहा, JPS कुशवाहा, जो आर्मी ऑर्डिनरी फोर्स से है। कुशवाहा जी साहब, प्लीज। 9 मिनट के बाद मैं आपको सिग्नल दूंगा। कुशवाहा। ओके, राइट सर, नो प्रॉब्लम सर। या प्लीज। जय हिंद सर, एक्स मेजर जनरल चौहान साहब एंड पुम्बा के HOD के CM चितले साहब और मेरे प्यारे QMTI के स्टूडेंट ऑल जो टीम मेंबर। सर, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आप बहुत बहुत शुक्रिया।
आज मैं जो छोटा सा बिजनेस कर रहा हूँ उसमें क्योमटे और पुम्बा यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बट आर्मी और सिविल लाइफ में टोटल अलग डिफरेंस है। आर्मी का लाइफ अलग होता है और सिविल का लाइफ अलग होता है। ये चीज बचपन में हम गांव से निकलकर आर्मी ज्वाइन किया, बिजनेस का तो कोई आइडिया ही नहीं था। जब मुझे 2013 में QMTI में पुम्बा कोर्स करने का मौका मिला, तब जाना कि मतलब कोर्स के दौरान सिविल और आर्मी में कितना अंतर है। उसी दौरान HR पोस्ट के लिए मुझे भारत फोर्स कंपनी में 1 साल के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग, वो इंटर्नशिप का मौका मिला। उसमें मेरे को बहुत कुछ चीज सीखने के लिए मिला। रिक्रूटमेंट करना, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, शिफ्ट वाइज डिटेल करना, उनको सेफ्टी ट्रेनिंग कराना, ये सारी मतलब आर्मी से रिलेटेड था बट सिविल का अलग था। वो सारी चीज हमारे को सीखने को मिली। और इसी के दौरान मतलब 2015 में फिर मैं रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट लेने के बाद में सोचा कि अपना खुद का बिजनेस चालू करूं। तो मेरा इलेक्ट्रिशियन में थोड़ा नॉलेज था, उसी से रिलेटेड मैंने काम चालू किया। इलेक्ट्रिशियन का और लिफ्ट का छोटा छोटा काम किया। उसमें 4-5 वर्कर रखे स्टार्टिंग में, तो उनको सैलरी वगैरह निकालने के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था और लोग बाग काम करा लेते थे, पैसे भी नहीं देते थे। ऐसा मेरे को लगा था स्टार्टिंग में, तो मैंने सोचा काम बंद करता हूँ। इसी के बीच में जो कंपनी है, जॉनसन कंपनी है, अपने थाइसन ग्रुप है, सिंगलर एलिवेटर्स है और फोजिटेक एलिवेटर्स है, इन लोगों से मेरा थोड़ा लिंक बना। तो उन लोगों से मैं सब कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू किया। जब कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू किया 2016 में, तो बिजनेस में मेरे को कुछ पैसा दिखाई दिया कि हाँ कुछ है। इसी दौरान मैं थोड़ा काम करते करते और मैन पावर को बढ़ाया और अपना पैसा इन्वेस्ट करके और दिल्ली मेट्रो में एक बार बात किया। तो वहाँ पर साहब से मेरी बात बनी, तो उन्होंने बोला ठीक है आप दिल्ली मेट्रो में काम कर सकते हैं। 2017 में मैंने दिल्ली मेट्रो में काम किया। काम बहुत अच्छा चला, बेनिफिट थोड़ा हुआ। उसी के से मेरे को कुछ सीख मिली। जो लोग काम करते थे वर्कर वगैरह, उन लोगों को ट्रेनिंग देना, और सब लोगों ने जैसा गाइडेंस दिया सिविल से, तो उसी हिसाब से मैंने उनको कंट्रोल करके फिर मैंने नागपुर मेट्रो में काम हाथ बढ़ा दिया। फिर नागपुर मेट्रो भी बहुत अच्छे से निकाल दिया मैंने। और जैसे ही नागपुर मेट्रो काम किया, आज की तारीख में पूना और बम्बई मेट्रो में दोनों कर रहा हूँ। मेरे पास 20-25 लेबर हैं, ज़्यादा नहीं है। और ऑफर आ रहे हैं कानपुर मेट्रो के लिए, मुंबई में लाइन 6 मेट्रो के लिए। उसी दौरान जो काम कर रहा हूँ, इसी में थोड़ी थोड़ी मतलब वर्कर से हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि टाइम टू टाइम उनका सैलरी करें। उनकी कोई प्रॉब्लम है, घर की प्रॉब्लम है, उसको हमें सॉर्ट आउट करना पड़ता है। अब हम जब वर्कर की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं तो हमारा ग्रोथ बढ़ता है। और इसके बाद में जो काफी मतलब जो हम 2000 जो एक्सीलेटर का बिजनेस करते हैं, उसमें उसका वजन कम से कम 18 से 30 टन होता है। इसमें कुछ मतलब परेशानियां होती हैं। ये काम हम ज्यादातर 7-8 लड़कों के बीच में करते हैं और बड़ा मशीन होने की वजह से हमें 100 टन तक की क्रेन इस्तेमाल करनी पड़ती है। और वो काम हम रात को ही कर सकते हैं क्योंकि रोड के ऊपर रोड ब्लॉक करना पड़ता है। लोकल पुलिस और जो मतलब ट्रैफिक पुलिस दोनों को कोऑर्डिनेट करके और हमें इस चीज का मतलब पूरी नाइट में एक काम करके देना होता है। जब वो छोटे छोटे पीस में आता है 2 टन में, 3 टन में, और जब पूरा मिल जाता है तो 18, 20 टन, 22 टन, 26 टन ऐसा उसका वजन हो जाता है। और उस वजन को एक क्रेन के साथ में हैंडल करने के लिए कोई इंसिडेंट ना हो, इसको मद्देनजर रखते हुए टीम को डिप्लॉयड करना पड़ता है कि कौन क्या काम करेगा। उसी हिसाब से हम उस मशीन को 30 मीटर, 15 मीटर जो उसकी हाइट होती है उसी के हिसाब से हम मैनेज करते हैं।
और जब पूरी रात में वो काम कंप्लीट करके सुबह 4 बजे ट्रैफिक चालू होना होता है, उससे पहले वो काम हमें करके देना होता है। जब हमारी मशीन यथास्थान शिफ्ट होस्टिंग हो जाती है तो उसको हम इंस्टॉलेशन करने के लिए 7 से 8 दिन का या 10 दिन का समय कंपनी को देते हैं कि इतना समय लगेगा, और हमें स्टार्टअप के लिए लाइट चाहिए, सप्लाई पावर वगैरह। जब सप्लाई पावर वो दे देते हैं तो हम मशीन को चालू करके उनको हैंड ओवर कर देते हैं। और जो लड़के हम भर्ती करते हैं उसमें ज्यादातर लड़के हम ITI या एक्सपीरियंस वाले ढूंढते हैं, जिससे कि हमारे काम में कोई डिफिकल्टी ना आए और भविष्य में हम काम को और ग्रोथ करें। और अपने इंडिया से बाहर जाने का थोड़ा हमारा प्लान चल रहा है कि मतलब बाहर काम, इसी काम को हम इंडिया में लेते हैं तो 1,10,000 समथिंग जॉब मिलता है, और वही काम हमारा अगर बाहर हम विदेश में जाएंगे तो मतलब 5 लाख 10 लाख का एक जॉब मिलता है। तो लड़के लोग भी काफी मतलब इच्छुक हैं कि साहब काम आगे बढ़ाएंगे तो आप मतलब हम कोशिश करेंगे, और उनका पासपोर्ट वगैरह की हमारी तैयारी चल रही है। आगे मतलब समय में हम सोच रहे हैं बांग्लादेश में अभी मेट्रो आया है, उसका काम करने का हमारा प्लान चल रहा है। जो समस्याएं हैं केवल यही होती हैं कि मतलब कंप्लेंट्स वगैरह, गवर्नमेंट कंप्लेंट्स वगैरह टाइम टू टाइम करना पड़ता है, वर्कर्स का महीने में टाइम से पेमेंट करना पड़ता है। यही सारे चीज़ों को मतलब थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, और जो अपने सुपरवाइजर्स होते हैं उनसे शाम को फीडबैक लेना, नेक्स्ट दिन का प्रोग्राम वगैरह प्लानिंग करना, ये सारी परेशानियों को थोड़ा मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है। वेरी गुड, थैंक यू एवरीवन थैंक यू for giving me और this आपका opportunity. आगे क्या जर्नी और सक्सेसफुल हुए ऐसे हमारी इच्छा है। Thank मैं you. अभी नरेंद्र सिंह राठौर से विनती करता हूं तो अपनी कहानी बताए। नरेंद्र सिंह राठौर, NS राठौर, क्या होगा, आया था ना? आवाज आ रही है सर? यस, बिल्कुल तगड़ा, वेरी गुड। जय हिंद सर, नमस्कार सर। जय हिंद, जय हिंद। माय नेम इज एक्स हवलदार नरेंद्र सिंह राठौड़ फ्रॉम 29 पैरा, और मैं अभी मेरे एक इंजरी, सबका मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं QMTI CEO, और मेरे सबसे अजीज मिस्टर चितले सर, सुरभि मैम, और सभी जो आदरणीय गणमान्य लोग इसमें जो जुड़े हुए हैं कॉन्फ्रेंस में। मैं अपने आप को काफी भाग्यशाली समझता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और इतने लोगों की बात सुन के कुछ और एक्सपीरियंस अपने अंदर डालने का एक अच्छा मौका मिला। मुझे एक इंजरी हो गई थी 2015 में, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई थी, मैं व्हीलचेयर पे था। और नरेंद्र सिंह, जरा थोड़ा आपका इंजरी कैसे वो बता रहे हो? मैं काफी सेमिनार में, वेबिनार में आपके बारे में बात किया है, तो थोड़ा उसका थोड़ा ज्यादा बता देना, कैसे हुआ है? जी सर, मेरा रोड ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट हुआ था सर गाड़ी से, और मेरे C6 C7 नहीं, आप वो पैराशूट से जंप कर रहे थे ना, वो बताइए ना। हाँ जी सर। तो उस समय पैराशूट नहीं खुलने की वजह से और नीचे पत्थर आ गया था सर, उसकी स्पीड ज्यादा थी, और उस वजह से मेरे क्या कि स्पाइनल में या गर्दन में पत्थर लगा था, जिसकी वजह से मेरे को चोट लग गई। और मेरा जो नीचे का हिस्सा था वो कुछ भी काम नहीं कर रहा था, हाथ से लेके पैर से लेके कुछ भी नहीं उठता था सारा। मतलब एक अटेंडर की जरूरत होती थी मेरे को, अगर खाना भी खिलाना तो वही खिलाएंगे, पैर को इधर से उधर भी करना तो भी वही करेंगे, हाथ भी उठाना तो वही उठाएंगे। ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में था मैं। जब मैं QMTI में आया तो मुझे BISM कोर्स करने का मौका मिला। उस समय भी इतना मोटिवेशन नहीं था, पर जब चितले सर ने एक बार अपने एक स्पीच दी थी वहां पर सभी स्टूडेंट को, QMTI को, तो वहां पर मुझे ऐसा मोटिवेशन मिला कि सर ने बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आप सब कुछ कर सकते हो, आप में सब काबिलियत।
और वही काबिलियत और वही स्किल लेके सर मैंने क्विंटे कोर्स किया। इससे पहले जब मैं ऑन ट्रीटमेंट था तो डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि भाई आप चलने के काबिल नहीं हो। मैं बोला मैं सर मैं कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा, ये दिल्ली की बात है, आरआर हॉस्पिटल की। डॉक्टर साहब ने बोला आप ठीक होने की तो बात छोड़ो, आप व्हीलचेयर से बेड और बेड से व्हीलचेयर पे कैसे आना है इतना सीख लो। तो मुझे लगा था कि मैं अब खत्म सा हो गया, लेकिन हौसला नहीं तोड़ा, अपना जज्बा नहीं तोड़ा। मैं अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके मैं कोई नहीं, हुआ जो हुआ, हम जरूर कामयाब होंगे। इसी दौरान मेरे को क्यूएमटीआई में सर की स्पीच सुनने का मौका मिला और उस स्पीच से इतना मोटिवेशन हुआ मेरे अंदर कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं एक डिसेबल सोल्जर हूँ और मैं आज व्हील चेयर पे। मैंने कोर्स किया, कोर्स करके, और मैं 17 सितंबर, ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि टाइम की थोड़ी पाबंदी है। है आपको 4 मिनट है और डोंट वरी, बात करो। जी सर, 5 मिनट है। तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा आगे क्या कर रहा हूँ। चलो। तो सर मैं यहाँ पर आया और मैंने सबसे, मेरा जो मोटो था कि हम होटल करेंगे, क्योंकि ये जो मेरा जो यहाँ का जो एरिया था ये थोड़ा नॉनवेज खाने वाला ज्यादा है। तो इसी कमी को लेके मैंने यहाँ पर आते ही 24 सितंबर 2017 को होटल स्टार्ट कर दिया था। और एक गांव में उस होटल को इस लेवल पे गया था कि बाहर से लोग आते थे, 50-50 किलोमीटर दूर से, 70-70 किलोमीटर दूर से स्पेशली लोग यहाँ पर खाने के लिए आते थे। लेकिन वही है, जैसे अभी प्रीतम सर ने बोला था कि सिविल में टांग खिंचाई बहुत ज्यादा होती है और एक फौजी आदमी को फौजी समझ के ही लूटने की, मतलब वो जैसे पेड़ होता है ना जिसपे कुछ फल लगे हो उसको झाड़ लो ना, इस तरीके की मानसिकता सिविलियनों की होती है। मेरे सपोर्ट में कोई नहीं था तो मैंने उसको 1.5 से 2 साल तक चलाया और फिर मुझे लगा कि इसके अंदर अपना जो प्लस पॉइंट है वो कम आ रहा है, जो प्रॉफिट है वो कम है और 20% के लगभग नॉनवेज के अंदर 20 से 30%, 70% खर्चा आ रहा था। और जब मैं कभी मार्केट चला जाता था तो उसको क्या है कि जो पीछे वाले जो वर्कर थे वो एक आध दिन में बराबर कर देते, उस बैलेंस को लाने में मुझे 2-3 दिन लग जाते। तो ऐसे करके फिर मैंने उस होटल को दे दिया पार्टनर में और फिर मैंने अपने जमीन के ऊपर प्लांटेशन किया 10 बीघा में, 7 से 10 बीघा में, यानी कि 1.5 एकड़ के लगभग। तो उसमें नींबू और अमरूद के प्लांटेशन करके ड्रिप वगैरह ये लगा के, आज की डेट में हालांकि फ्लावरिंग फ्रूटिंग चालू हो गई है उनमें। तो एक काम तो मेरा वो रहा, उसके साथ साथ फिर मैंने होटल को पार्टनरशिप पे दे दिया था और उसके साथ ही मैंने कंस्ट्रक्शन का काम, जैसे पंचायत का काम आता है, पंचायत लेवल का, ये रोडों का काम आता है, जो गाँव में जो नरेगा के काम चलते हैं, तो मैंने यहाँ से जेसीबी ली और एक ट्रैक्टर लिया। उसमें काम मैंने कर ही रहा हूँ, अभी भी चल रहा है वो काम मेरा और वो अच्छा चल रहा है, उसमें पैसा भी अच्छा है और काम भी अच्छा है। बशर्ते ये कि जैसे मार्केट में पैसा निकालने के लिए तो कुछ तो रखना ही पड़ेगा, आपको अपना हिम्मत नहीं तोड़ना है, अपना हौसला नहीं तोड़ना है और ईमानदारी तो रखनी ही पड़ेगी। और रही बात फौजी की पहचान छुपाने की, तो मैं तो ठोक के बोलता हूँ मैं फौजी हूँ, फौजी हूँ और फौजी होके काम करूंगा। तो एक जो लोगों की जो सोच है ना यहाँ पर हमारे जो राजस्थान में, चाहे प्रीतम सर क्या बोल रहे हो वो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर एक फौजी के नाम से मतलब एक कदम हम आगे हो जाते हैं, ऐसा सोचते हैं लोग कि हाँ यार फौजी आदमी है, मतलब एक ईमानदार व्यक्ति होंगे, एक मतलब सच्चाई वाला व्यक्ति होगा। लोगों को ज्यादा वो इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं जब जेसीबी लेने गया तब भी मुझे इस चीज की समस्या नहीं है, मैंने बिल्कुल क्लियर कट परिचय दिया था अपना कि मैं इस तरीके से आर्मी में था और ये इंजरी हो गई थी मेरे को। लोग सपोर्ट करते हैं हाँ, लेकिन टांग खींचने वाले भी हैं और पैसा मार्केट से निकालने के लिए कुछ तो मेहनत करनी ही पड़ती है, इतना जल्दी सिविलियनों से पैसा नहीं निकलता है। ये चीज मैंने नोट करी यहाँ पर। अभी जो मेरा आगे का प्लान है सर, अपने गवर्नमेंट ई मार्केटिंग एक जेम करके अपनी वेबसाइट है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल लॉन्च किया था, उसमें भी मैं अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी नंबर लेके डालने की सोच रहा हूँ। उसमें स्टेशनरी वगैरह ऑल जो डिफेंस फोर्सेज है, जैसे आर्मी होगी, आईटीबीपी होगी, एयरफोर्स होगी, नेवी होगी, इनको सबको स्टेशनरी हम सप्लाई करेंगे, तो उसमें भी अभी रजिस्ट्रेशन लूंगा मैं। और रही बात मेरी, तो मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ में हूँ। बिजनेस है, बिजनेस के अंदर लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा,
आपकी टांग खींचने वाले लोग भी मिलेंगे और आपको आगे पुश करने वाले भी मिलेंगे, बशर्ते कि आप कौन से लोगों के साथ में चलते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी मार्केट में ऐसा नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत बिना मेहनत के तो कुछ होने वाला नहीं। आपको मैं अपना हौसला मैंने कभी नहीं तोड़ा है। जब मेरे को इतनी बड़ी इंजरी हुई थी तब भी मेरे में हौसला वही था, आज भी हौसला वही है। हालांकि तकलीफ है, बॉडी में बहुत सारी तकलीफ रहती है, चला नहीं जाता, ठीक से चल नहीं पाता हूँ, सहारा लेना पड़ता है, दवाई खानी पड़ती है, जलन रहती है, आधे शरीर में पता चलता है, कोई अंग में पता नहीं चलता, आधे पैर ठंडा रहता है। ये सारी तकलीफें तो है, वो रहेगी स्पाइनल कोड में। तो मैं, या तो मेरे पास दो रास्ते, या तो मैं इन तकलीफों को लेके बेड पे पड़ जाऊं, या फिर मैं इन तकलीफों को भूल के उठ के आगे बढ़ूं। और चितले सर से मैंने यही बात सीखी थी वहां पर कुइमटे में, कि जरूरी नहीं है कि आपके हाथ पैर सही सलामत, जरूरी वो होता है कि आपके अंदर हौसला और आपकी सोच क्या है। और मैंने जो DISM कोर्स में जो सीखा, मार्केट में हालांकि वहां पर बड़े लेवल से लेकर छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक सब सिखाते हैं, और एकदम कोई आदमी बड़ा बनता नहीं है, हमेशा छोटे नीचे वाली सीढ़ी से हम धीरे धीरे चढ़ेंगे तो ऊपर वाली जाने कितनी मंजिल चढ़ सकते हैं। वेरी गुड, थैंक यू सर। अभी नेक्स्ट जो मैं करने वाला हूँ वो जेब में अभी एक मेरा बात मैं याद Very good. ऐड करना चाहता हूँ नरेंद्र Very सिंह। nice. जब ये पूना में थे तो मुझे याद है हमारे फैकल्टी के लड़के का जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया और बेड रिटर्न हो गया था। तो उस टाइम नरेंद्र सिंह राठौर उसके घर में जाके अपना खुद का केस बता के उसका हौसला अफजाई किया था, मुझे याद है। और जो आपने अभी बताया, एक जो कमांडो में प्रिंसिपल हम सिखाते हैं, हम सीखते हैं, when going gets tough the tough gets going। वेरी गुड। मैं अभी Sir, very nice. जो Sir, his That's video very should nice. be telecasted, sir, as an example for others. He has spoken so well about his I know, disability very and with fight. confidence, with Yes, confidence. he should be on video YouTube, sir. Yeah. His Yeah. speech. ज्योति शर्मा से बात करता हूँ, ज्योति शर्मा। और अगर संदीप लाइन ऑनलाइन है क्या? संदीप, उसको एक 3-4 मिनट मौका दूंगा मैं। हाँ, इसके बाद आपने अपना बाकी का क्या कहानी बताना है सर। ज्योति एक यंग एंटरप्रेन्योर है मेरे ख्याल से। पिछले 15 दिन पहले मैं गाड़ी चला रहा था और गाड़ी पार्क ही कर रहा था, तो ज्योति का फोन आया और उसने मुझे बताया कि सर मैंने कल एक बिजनेस शुरू किया। ओवर टू यू ज्योति, शुरू करो। जी सर, गुड आफ्टरनून। जय हिंद सर, सबको मेरी तरफ से सर जय हिंद। सभी आदरणीय, सभी रिस्पेक्टेड, जो मेरी आज हिम्मत इस कदर हो रही है कि मैं आप सबके सामने बोलने वाला हूँ, मेरे को खुशी हो रही है बहुत जरा। तो सर ऐसे है कि मैं अभी ही 30 जून को रिटायर हुआ हूँ। तो मेरे लिए प्लस पॉइंट ये था कि जो मेरा ब्रदर है ऑलरेडी एक बिजनेस कर रहा है, जिसका हमारा ये काम है कंप्यूटर से रिलेटेड, IT से रिलेटेड। IT फील्ड के अंदर हम सिक्योरिटीज, जो CCTV सिक्योरिटीज होती है, उसके हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। जैसे स्कूल के कॉन्ट्रैक्ट, अपने स्मार्ट क्लासेस होती है स्कूल के अंदर, वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। कंप्यूटर लैब्स होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। हमारे पास ऑलरेडी प्लस पॉइंट था कि हमारे पास GST नंबर ऑलरेडी हमने ले रखा है, सब कुछ मतलब ये। अब मैंने जो QMTA से, क्यून मेरी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से जो सीखा, जो चितले सर ने सिखाया, या फिर सभी DSM कोर्स के जितने भी लेक्चरर जो हमारे थे, उन सब से जो मैंने सीखा, मैं स्पेशल उनसे क्वेश्चन करता था कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। क्योंकि जो मेरे साथ ब्रदर से सुनता था ये प्रॉब्लम फेस होती है, तो वो क्वेश्चंस मैं डायरेक्ट करता था उनसे कि हाँ भी मेरे को इन फ्यूचर इस चीज के लिए प्रॉब्लम ना आनी पड़े। सबसे पहले तो मैंने देखा कि हम जो हमारा बिजनेस है इस लेवल को हम एक्सटेंड करने जाए। मेरा मेन जो आने का मकसद ये था कि जो मेरा बिजनेस का लेवल है उसको मैं उस लेवल पे लेके जाऊं। अगर हम एक स्टेप चढ़े हैं तो उसको लास्ट स्टेप तक कैसे लेके जाएं, तो वो सब चीजें मेरे को DSM कोर्स से बहुत ज्यादा बारीकी से सीखने को मिली। तो मैं तो हमारे डीन सर जो अभी सर हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि मैं डे 1 से ये बोल रहा था कि मैं DSM करने के लिए आया हूँ, लेकिन मेरी खुशकिस्मती है मेरे को कोपा करने का ही मौका मिला। तो फर्स्ट ईयर मैंने कोपा किया, फिर मैंने सेकंड ईयर DSM कोर्स किया। सर इस कोर्स में सबसे पहले तो सर जो आपके वाला अभी भी ताजा सीखा था मैंने 5S। सबसे पहले तो मैंने 5S इंप्लीमेंट किए, जो जैपनीज वर्ड होते हैं सर। उससे ये फायदा हुआ कि सब शॉर्टनिंग वगैरह सब कुछ जो भी किया उस चीज का मेरे को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और दूसरी बात सर, यहाँ मेरे को सीखने को मिला कि एक
हाई लेवल के जो उस पदवी पे बैठा हुआ उस बंदे से किस तरीके से बात की जाए, किस तरीके से डील की जाए कि हमको वो कॉन्ट्रैक्ट मिले, हमारे साथ वो जुड़े, या भी हमारी वो सर्विसेज या भी हमारा वो काम को उनको करने का मौका मिले। तो सर अभी पंजाब के अंदर क्या हुआ, हाल ही के अंदर मेरे को मौका मिला, क्या हुआ कि यहाँ पर ग्रांट्स आई लिसनिंग लैब की, जो लिसनिंग लैब की ग्रांट्स आई, तो मैंने उस लिसनिंग लैब की ग्रांट्स के बारे में सुना, तो मैंने अपने लिंक्स निकालने स्टार्ट किए। तो हमारे लोकल एरियाज के अंदर जो जितने प्रिंसिपल्स थे उनके साथ मैंने कॉन्टेक्ट स्टार्ट किया। तो प्रिंसिपल सर जो थे सबसे पहले जो कहते हैं कि आर्मी का नहीं बताना, मैं आर्मी का ही जाके बताता था कि सर मैं 5 राजपूत से हूँ, मैं ऐसे रिटायर हुआ हूँ, तो मतलब एक थोड़ा सा हिंट मैं आर्मी का पक्का देता हूँ। तो उन वो एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी और भी ज्यादा रिस्पेक्ट होती है, मेरी वहां पर जाके और भी ज्यादा मेरे को रिस्पेक्ट मिलती है। और थोड़ा मेरा जो जो मैंने सीखा यहाँ से बोलने का तरीका है ना, उससे मेरे को बहुत ज्यादा फायदा मिला। तो ये कह लीजिए अभी मेरे को 10 से 15 दिन मेरे को ऐसे हुआ है कि एक मैंने सांबा में सेक्टर क्या कहते हैं अम्निशन डिपो हमारा, वहां पर सर 60 से 70 कैमरा लगे हैं। वो दिल्ली से आया था बंदा जो कैमरा लगा के गया था। तो सर वो आज के टाइम पे एक भी सिक्योरिटी कैमरा नहीं चल रहे। तो उसका सर 1.50 लाख का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा डील हुआ सर्विसेज का सर। उसमें नए भी लगने हैं, जो भी उसके अंदर खराबी होगी, जो भी हुआ वो हाल ही में मैंने ये डील किया। सबसे पहली बात तो सर मैंने देखा कि जहाँ पर हमारी जो सर्विसेज है उसके लिए हमको बेस्ट डील देने के लिए जैसे ही ग्राहक का कॉन्टैक्ट दोबारा आता है उसको एकदम से वापस उसके साथ हमको फीडबैक देना पड़ेगा उसको, उसके साथ वो हमारे साथ अच्छे से जुड़ा रहे। तो इसलिए अपनी टीम तैयार की मैंने, एक टीम तैयार की जिसके अंदर जो वेल स्किल्ड जो हमारे बिजनेस को जानते हैं उन बंदों के साथ मैं जुड़ा, जो ऑलरेडी मेरे ब्रदर के फ्रेंड थे, मेरे को जानते हैं। फिर उनको आज के टाइम पे मैं इधर बैठा बैठा सर उनको सबको मैं काम भेजता हूँ, काम बताता हूँ, काम मेरे पास रखे रहते हैं तो उनको काम भेजता हूँ मैं। तो मैंने सर उनका मतलब जो परसेंटेज सिस्टम भी कर रखा है, अपनी जो मार्जिन है वो मैं रखता हूँ, और अपना ग्राहक को मैं दिक्कत नहीं आने देता हूँ, और ग्राहक की मैं अच्छे से डील करता हूँ। और सर जो हमारे पास सबसे ज्यादा मार्जिन होता है सर, कमाई है जो बीच की, वो है एएमसी करने में। ठीक है सर, अगर हम ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो ग्राहक हमसे जुड़ा रहता है, तो एएमसी करने में हमको बहुत ज्यादा फायदा होता है सर। तो जो भी सिविल के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर है, जैसे इधर हमारे उन्नति आंवला फैक्ट्री है, वहां पर सिक्योरिटी सिस्टम आज के टाइम पे जो आपका ही एक सब्जेक्ट था लास्ट, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला कि जो उनकी बारीकियां हैं उसको सर्विलेंस करने की, उसको बताने की, सब चीजें हम डीपली समझाते हैं उनको। अभी इसके साथ साथ मेरे को कोपा करने का मौका मिला था, तो सॉफ्टवेयर से मैं रिलेटेड हो गया हूँ, जुड़ गया हूँ। तो हमारे पनीत सर है, उन्होंने वो सॉफ्टवेयर डिजाइनर है या फिर कुछ भी है, उन्होंने मेरे को बताया कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर सॉफ्टवेयर का जो गैप है कैसे ढूंढना है। आज के टाइम पे मैं हाल ही में 2 रेस्टोरेंट का मैं बिलिंग सॉफ्टवेयर मैंने उनको मतलब बनवा के दिया। मतलब एक मैंने आउटसोर्सिंग की, तो उसमें भी जो भी मतलब हर जगह से जहाँ पर जो मेरी स्किल्स है, जो मैं कर सकता हूँ, जो मैनेजमेंट का अगर डिप्लोमा का किया है, डीएसएम किया है, उसका कहाँ मैं यूज कर सकता हूँ वो मैं अच्छे से निभा रहा हूँ। रही बात जैसे ये सर कह रहे हैं कि पैसा फंसता है, तो सबसे पहले मैं वही सेक्टर चूज करता हूँ जहाँ पे मेरे को पैसा अच्छे से मिल जाए, जिसको गवर्नमेंट सेक्टर होता है जहाँ पर पैसा दबे ना। तो अगर मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे को प्रॉपर ग्रांट मिले, प्रॉपर जो ग्रांट मिलती है ग्रांट के अकॉर्डिंग प्रॉपर मैं हर चीज को ना बिल्कुल केयरफुल होके चलता हूँ कि हाँ भी पहले से भापना पड़ता है कि हाँ भी ये बंदा मेरा पैसा ना फंसा दे, तो वहां पर कूदना ही नहीं है, वहां पर मैं घुसना ही नहीं है। तो मतलब ये थोड़ा सा मैंने सीखा है अपने भाई से भी और ऐसे भी। और रही बात ये कि ये जो डीएसएम कोर्स है या फिर क्यूएमटी में आके या चितले साहब जो है, इन्होंने मतलब हर तरीके से हमारे अंदर ऐसा कूट कूट के मतलब ताकत भर दी है, जिसको हम ताकत कहते हैं कि हम मैं तो ये सोच नहीं सकता कि मेरे दोनों टांगों में गोली लगी और मेरे 15 ऑपरेशन हो रखे हैं, मेरे को ये सोचने का समय नहीं मिलता। तो सर कह रहे हैं ना कि जलन होती है टांगों में, दर्द होती है पैरों में, मतलब इसकी अब ध्यान ही नहीं है इसकी तरफ, कितना मैं अपने आप को एंगेज करके बैठा हुआ हूँ सर। वेरी गुड। ठीक है, किस वजह से, इसी वजह से कि हमें मन में ये है कि बिजनेस को उस लेवल पे लेके जाना है। मतलब मैंने एक जगह पूछा सर आपको एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलता है, मैं सीखता हूँ यहाँ पर
जिन्होंने एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा सिक्योरिटी का, कहते हैं सर कुछ नहीं है, आपका स्टार्टिंग जो होनी चाहिए 30 से 35 लाख की होनी चाहिए। तो मैंने बोला अच्छा इतनी बड़ी बात तो नहीं है। तो मैंने बोला जो आपकी कॉन्टैक्ट करने का तरीका क्या है, उनसे वो सीखा मैंने। जैसे वो सेम वही चीज थी जो डीएसएम में मेरे को सिखा दी गई ऑलरेडी, बस वो इम्प्लीमेंट करते जा रहा हूँ, और जो छोटी छोटी चीजों से मेरे को मौका मिल रहा है करने का वो करते जा रहा हूँ सर। वेरी गुड ज्योति, जी थैंक सर, यू। जी सर, जी सर। ज्योति थैंक यू सो मच सर। कुछ जब आप इधर थे क्यूएमटी में किसी के साथ आपने बातचीत किया था कि पंजाब से कुछ स्वेटर्स वगैरह गर्म कपड़े लाके इधर बेचने जी वाला जी हूं, जी वो भी सोच जी जी विचार जी। करो, डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग हाँ जी, बिजनेस भी सोच विचार करो। हाँ थैंक जी यू जी वेरी जी जी। मच। तो मैं अभी संदीप से बोलता हूँ, 5 मिनट बात करें, उसको बीच में बंद हो गया था। थैंक यू सो मच सर। या थैंक यू वेरी मच संदीप, 5 मिनट, क्योंकि बाकी जय सर, और सॉरी। नहीं, नो नो प्रॉब्लम सर सॉरी, सॉरी, 5 मिनट में नेटवर्क मेरा कट गया था सर। हम शॉर्ट एनालिसिस के ऊपर आ गए थे। हाँ हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग को राइट सर, तो साहब चितले सर ने हमें बताया कि आप अपने आप को कैसे सॉर्ट कर सकते हो। उसके बाद फौजी, जब हम फौजी ज्यादातर सिक्योरिटी टाइप वाली जॉब सर्च करते हैं, तो उसमें तो हम लोग सिक्योर रहते हैं सिक्योरिटी टाइप के लिए, हम जॉब सर्च करने के लिए। तो वहां पर डीआईएसए में हमें ये बताया गया कि आप लोग सिक्योरिटी टाइप में जॉब मत सर्च करो, आप खुद सिक्योरिटी एजेंसी खोल सकते हो, ये आपके पास काबिलियत है। वो यहाँ पर हमें बता दिया। और जो धर्माधिकारी सर है वहां पे उन्होंने ये बताया कि अगर गलती से मेरा डीआईएसएम का एक भी स्टूडेंट अगर सिक्योरिटी में खड़ा हो गया, तो उसी टाइम मैं उसको वहां से निकाल दूंगा और मैं मेरी जॉब में रखूंगा, चाहे मैं उसको कुछ भी करूं। मतलब ये वहां भी हमें कॉन्फिडेंस दिलाया। और उसके बाद ये बताया आप करेक्ट 1000 दिन मेहनत करो, 999 डेज एक बार मेहनत करो, और वो मेहनत ऐसी करो कि उसमें रोज नया, डे बाय डे नया इनोवेशन करते रहो। तो वो इनोवेशन जब आप करते रहोगे ना, तो 1000वें दिन में जब आप जब बैठोगे ना आपके ऑफिस में, आपके सिर्फ एसी का बटन चालू करोगे और उसमें टेम्परेचर हाई और लो करने की आपकी कैपेसिटी होगी, और आपके पास व्हील चेयर होगी। बाकी मेहनत आपकी जो 999 डेज है और उसका जो अनुभव है वो करती रहेगी। डीएस उसके बाद डीएसएम में 2 महीने का एक क्या बोलते हैं इंटर्नशिप किया जाता है। तब वो फिक्स रहता है कि आपको 2 महीने वो कंपलसरी है। तो मेरे भाई की मदद से पुणे मेट्रो रेलवे कास्टिंग यार्ड रावेत, पुणे में रावेत किवड़े करके वहां पे मैंने ज्वाइन किया था 2 महीने का एंटरप्रेन्योरशिप। तो वहां पे बोडो दुबई बेस की बहुत बड़ी कंपनी थी अल्फ्रा। आप गूगल पे सर्च मारोगे तो वो कंपनी आई थी। और अपना यहाँ पे पुणे वाला एक बहुत बड़ा आदमी था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने ज्वाइंट वेंचर पे काम किया था। तो वहां पे मैंने 2 महीने, द फर्स्ट स्टेज में वो कंपनी आई थी, वहां पे मैंने ज्वाइन किया था 2 महीने। तो वहां पे मेरे को वहां पता चला कि उनको मतलब रोज ही नए नए प्रॉब्लम फेस करने पड़ते थे। मतलब लोकलाइट जो पर्सन है वहां पे लैंड एक्विजिशन, गवर्नमेंट की एनओसी, मेट्रो का इंस्पेक्शन, उसके साइट के एक्सीडेंट, उसके जो ब्रोकर आते हैं, वो सप्लायर आते हैं, मटेरियल के कुछ इश्यू होते हैं, मटेरियल डुप्लीकेसी होती है, वहां पे मैंने वो बिल्कुल पास में जाके देखा था। तो वो दो महीने में मतलब वो मैंने जो डायरेक्टर लेवल के लोग थे उनके आगे पीछे मैं घूमता रहता था। तो वो लोग कैसे हैंडलिंग करते हैं उसको क्या बताते हैं सामने वाले को, तो मैंने वहां पे जाके सीखा 2 महीने में। उसके बाद कुंभा ने एक बहुत ही बढ़िया ईडीपी वाला कोर्स चालू किया। तो साहब ने बताया वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो कोर्स है। तो उसके बाद वहां पे रियलिटी में सिखाया कि आप पहले दिन में जाके शॉप, मतलब अपना शॉप कैसे चालू करोगे। तो वो वहां पे जीएसटी नंबर आप कैसे ले सकते हो, आप शॉप एक्ट कैसे लोगे, आप लाइसेंस कैसे लोगे, आपकी एनओसी कैसे लोगे। यहाँ पर मतलब ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके वहां पे पढ़ाया, और वहां पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा। तब हम तब मेरा पूरी तरह से माइंड सेट हो चुका था कि मैं बिजनेस में आफ्टर रिटायरमेंट मैं बिजनेस शुरू करूंगा। लेकिन वो जो 2 महीने के बाद जो एक्सपीरियंस मिला था और जो ईडीपी में मेरे को बताया था, तो मैं वो जो आफ्टर रिटायरमेंट जो जॉब करने वाला था, तो मेरे पास और 1 साल था। वो 1 साल तो ओजीटी का पीरियड था। तो ओजीटी का पीरियड मैं बोला कोई बात नहीं, वो ओजीटी का पीरियड मैं वेस्ट नहीं करूंगा, मैं अपनी खुद की मतलब शॉप ओपन करूंगा। तो मैंने मेरे भाई की मदद से, एक पार्टनर है यूपी का, उसके मदद से तलवड़े एमआईडीसी पुणे, वहाँ पे एमआईडीसी पुणे की बहुत बड़ी एमआईडीसी है तलवड़े में, वहाँ पे मैंने मेरा शॉप ओपनिंग किया। उस शॉप में मैंने शटरिंग इक्विपमेंट, जो आपको मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए खड़ा करने के लिए शटरिंग इक्विपमेंट लगता है, स्टील स्कैफोल्डिंग जिसको बोला जाता है, वो मैंने 2018 में ओपन किया। मतलब जो मैं रिटायरमेंट की बात करने वाला था, तो मैंने 1 साल का पीरियड में बोला नहीं वो मैं यूज करूंगा।
तो मैंने वहां पे चालू किया, जो मतलब ब्रिज के फॉर्म वर्क है, एक्रो प्लेट है, सेंटरिंग प्लेट है, प्रॉप स्पैन कपलॉग, जो मतलब वो उस साइड में है उनको थोड़ा सा पता चलेगा, आपको थोड़ा नया लगेगा। शटरिंग एसेसरीज है, उसकी मैंने ट्रेडिंग चालू की, और कुछ शटरिंग 4 से 5 एसेसरीज है वो मैंने इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग चालू किया। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब छोटी छोटी इक्विपमेंट थी वो मैंने इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग चालू की, लेकिन कॉन्फिडेंस था उसके दौरान। मतलब जो बिल्डिंग में रोड में खड़ा करने के उस मतलब वो होता है, उसमें मेरे को बहुत अच्छा प्रतिशत मिला। उसके दरमियान मैंने पुणे में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है शिवाजी नगर, जहाँ पे सुना होगा कोर्ट, शिवाजी नगर कोर्ट और कुंभारवाड़ा, वहां पे एक ब्रिज है, वो जो बटरफ्लाई ब्रिज जो माना जाता है पुणे में पहला बटरफ्लाई ब्रिज, वो हम लोगों ने ओपन किया। और जो बटरफ्लाई ब्रिज 2.80 CR का मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिला था, मेरे को मतलब मेरी कंपनी को, जो मैंने, क्योंकि इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि जो पार्टनर था वो ऑलरेडी उसमें था, लेकिन वो भी शॉप ने डाला था। और मैंने बोला भाई छोड़, हम लोग तो पार्टनर है, मेरे पास थोड़ा सा मतलब चलन है और तू तेरा दिमाग है, तो वो ऑलरेडी था। तो हम लोगों ने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, TNT करके एक कंपनी, आप गूगल पे सर्च मारोगे मिल जाएगी, बहुत बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसके साथ मैंने वो मेरा इतनी बड़ी अचीवमेंट थी कि वो जो काम मैंने मतलब 8 महीने का पीरियड है, मैंने 7.5 महीने का पीरियड में किया, और वो मेरा न्यूज़पेपर में उसमें हम लोगों की कंपनी का नाम आया था। हम लोग सब वेंडर थे, स्टील का काम किया मैंने, तो उसमें बहुत मतलब बहुत बड़ा मेरे को अचीवमेंट मिला, उसमें बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिला। और जो मेरे जो कस्टमर थे उसके दौरान, तो उनको मैं उंगली दिखाता था, वो देखो वो ब्रिज है और वो पुणे के रेलवे स्टेशन के पास है, आप जाके वहां पे देखो, उसके बाद मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दे दो। मतलब वहां पे वो पुणे स्टेशन या रेलवे स्टेशन या वहां पे जाके देखते थे कि यार ये चलो ठीक है, इतना बड़ा इसने काम किया है तो सब हमारा भी वो मतलब कर सकता है। तो उसमें मेरे को उसके बाद बहुत अच्छा साथ मिला। उसके बाद थोड़ी सी डिफिकल्टी भी आती है, आपको पता है हर चीज में। तो ये वो जो 1200 किलोमीटर बहुत बड़ी आप वहां पे जाओगे बटरफ्लाई ब्रिज में, 1 मिनट और ज्यादा से ज्यादा ऐसा 1 मिनट और। तो वो ट्यूब एक राइट सर, तो वो एक बंदे के टांग पे गिर गई, तो वो फिर एक्सीडेंट हुआ। EDP में बताया गया था कि आपको लेबर का इंश्योरेंस करा दो, तो लेबर का मैंने वहां पे इंश्योरेंस किया था, वहां पे मेरे को बहुत फायदा हुआ। TNT इंफ्रा, BG शिर के बहुत बड़ा नाम है, उनके साथ में जुड़ गया वो। अभी वो मेगा करके बहुत बड़ी कंपनी है जो ले लद्दाख में वो टनल के काम करते हैं, उसके लिए मतलब उसके मैंने मेरे पास टैक्स इनवॉइस है, उसके लिए मैंने काम किया है। मेगा सातारा में मैंने काम किया है, तो मतलब उसमें मेरे को इतना अच्छा लगा। उसके बाद मैंने मतलब 1 साल पूरा हो गया, उसके बाद मेरा जो पार्टनर था वो थोड़ा सा आगे पीछे करने लगा, फिर छोड़ दिया। फिर उसके बाद मेरे को पता चला, फिर मैंने भाई को वहां पे इन्वॉल्वमेंट कर दिया। मेरा भाई का 30 लाख का पैकेज है पर ईयर, मेरे भाई का 30 लाख का पैकेज है, वो छोड़ के मैंने मेरे भाई को बिजनेस में इन्वॉल्व किया, क्योंकि मेरे को ऑफिस में जाना था रिटर्न जो जॉब छोड़कर। तो मेरे भाई वो ऑलरेडी MBA है, घर में MBA है, 13 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी उसने आज तक जॉब ने शुरुआत की। और मैंने 1 साल का जो DISM कोर्स किया, उसने मेरी सुनी, और उसने 13 साल का एक्सपीरियंस छोड़ के उसने खुद बिजनेस किया। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस मेरे पास आया, थोड़ा सा कैपिटल शुरू हो गया। आज की डेट में मैंने फिर जो भोसरी में मेरा काम चालू किया, मेरे 12,000 से शॉप होके आज मेरा 75,000 रेंट है पर मंथ का। शॉप का रेंट की बात कर रहा हूँ मैं। मेरे 260 टन आज की डेट में मेरे पास जो मटेरियल है वो मैं रेंट पे दिया हूँ। 260 टन में से 240 टन मटेरियल आज मेरा रेंट पे है। आज भी मतलब मैंने वहां पे वो चालू किया। वो आज मैं मतलब गर्व के साथ कर सकता हूँ, जो मेरे को QMTI में दिया है ना, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। मतलब मैं जो सपना जो दिखा देना, चलो आप लोग सपना देखो, ये करो, जो एग्जीक्यूटिव लाइफ है, आप मर्सिडीज ले सकते हो। साला जो मर्सिडीज ले सकता है उसमें भी 2 टांगे, 2 हाथे, दो मतलब आंखें, उसके कोई भगवान ने 4 हाथ नहीं लिए, वो मर्सिडीज में घूम सकता है। वो फॉर्मेटिक में हम लोग क्यों नहीं घूम सकते? मेरा भी वही सपना है सर। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं घूमूंगा, लेकिन मैं ये आपको जरूर कमिटमेंट कर सकता हूँ कि मतलब मैं आगे जाके उसी में रिटायर होने के बाद उसी में आऊंगा। और संदीप, मैं अभी आपको रुकना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है आप बहुत कुछ करना चाहते हो। मैं आज एक एश्योरेंस देता हूँ कि इसके बाद जो वीडियो होगा ना, तो आपका आधा घंटा हर एक का इंटरव्यू लेने वाला हूँ मैं यूट्यूब। राइट सर, आप मेरे भोसरी शॉप पे पुणे में आप QMTI का विजिट करा दो। आज भी मेरा शॉप है वहाँ भोसरी में, 3,500 स्क्वायर फीट का, 75% मतलब बहुत अच्छा चल रहा है सर। ठीक है, थैंक यू संदीप, थैंक यू सर। मैं सुरभि जैन मैडम से
रिक्वेस्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ सभी पार्टिसिपेंट्स को। 2008 में जब हमने कोर्स लॉन्च किया था, उस दिन सूर्य ग्रहण था, मुझे आज भी याद है, अगस्त महीना था, सूर्य ग्रहण था। तो मैंने सुरभि मैडम से बोला था उस टाइम, क्योंकि सुरभि मैडम पहले दिन से इस कोर्स में जुटी हुई है और आज तो वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। तो मैंने उन मैडम को बोला था सूर्य ग्रहण एक अच्छा मुहूर्त है और इस कोर्स को कभी भी ग्रहण नहीं लगेगा। और 13 साल में मैं देख रहा हूँ ये बहुत ही बढ़िया चल रहा है और अपने बंदे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ओवर टू यू मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सो सभी आदरणीय अतिथिगणों को कुंभा की तरफ से नमस्कार। कुंभा और पुणे यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे बीच ऑनरेबल डॉक्टर NS उमरानी सर हैं, जो कि SPPU के प्रो वाइस चांसलर हैं और उनका खुद का जीवन एक मिसाल है। प्रीतम सिंह जी, संदीप जी, अमरजीत जी, कुशवाहा जी, राठौर जी, ज्योति जी, आप सबको सुन के बहुत अच्छा लगा और मुझे ये देख के बहुत खुशी और गर्व होता है कि आप इतनी सारी मुसीबतों से लड़ते हुए इतनी मजबूती से जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और आज उस मुकाम पे पहुंचे हैं कि आपका जीवन हजारों लोगों के लिए एक मिसाल बन गया है। तो जो भी ये YouTube वीडियो देखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपसे जरूर मनोबल प्राप्त करेंगे। जैसा कि सर ने बोला, हमने ये कोर्स 2008 में चालू किया, 13वां बैच पास आउट होने वाला है और अकेले नहीं, ये एक टीम वर्क है, एक जबरदस्त टीम वर्क है जिसमें पुंबा के फैकल्टी और एलुमनाई भी शामिल हैं। हमारे बहुत से एलुमनाई आज इस प्रोग्राम में हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो 13 साल से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वप्निल जी, प्रणीत जी, अक्षय जी, दीपाली मैडम, वीना मैडम, जो कि कंपनियों में काम करते हैं और सैटरडे संडेज लेट आवर्स आप लोगों को पढ़ाते हैं और आप से भी सीखते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपने या हमने, इट इज अ म्यूचुअल लर्निंग प्रोसेस एंड इट्स अ जर्नी दैट आई थिंक वी हैव ऑल एंजॉयड एंड वी हैव ऑल ग्रोन टुगेदर। हम साथ बड़े हुए हैं और हमने भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है। तो मुझे ये देख के बहुत खुशी होती है कि इस प्रोग्राम से आपका आत्मविश्वास बढ़ा। हमने इसमें जगह जगह टीचिंग मेथोडोलॉजी में प्रेजेंटेशन डाले हैं ताकि आप, बहुत सारे ऐसे जवान थे जिन्हें कभी ये मौका नहीं मिला देश के जवान होते हुए भी कि वो एक क्लास के आगे, ग्रुप के आगे कुछ अपनी क्रिएटिविटी बता सके। तो प्रेजेंटेशन, स्लाइड बनाना, कम्युनिकेशन, डिस्कशन, GDs, केस स्टडीज, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ये सब प्रयोग रहा और इनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। बहुत अच्छा रिसोर्स है ये आर्मी के जवान। ऑलरेडी इनकी स्किल सेट्स बहुत मजबूत होती हैं, तो थोड़ा सा ब्रशिंग अप किया तो देश को बहुत कुछ एक अच्छा रिसोर्स प्राप्त हो रहा है। और बहुत सारे लोगों ने इस कोर्स से ये मोटिवेशन और जीने की नई शक्ति प्राप्त करी। मुझे उस बात से और सर को भी, हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। तो मुझे आशा है कि आज आगे भी आप लोग ऐसा ही काम करते रहेंगे। अपनी कंपनियां चालू करने के सिवा ऐसे जवान हैं जो दूसरी कंपनियों में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ एक तो डेप्यूटी मैनेजर लेवल फाइनेंस ग्लोबल MNCs में काम कर रहे हैं। उनका भी हम एक दिन एक ऐसा सेमिनार कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने यहाँ आकर अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। डॉक्टर चितले सर का, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, सारे डिग्निटरीज, उमरानी सर जी, आपकी प्रेजेंस से हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। Thank you, Surbhi madam. Thank you very much. And I'm very happy that you are now mother of this particular course and you are going to continue and look after this course hence here onwards as well. So मैं अभी क्वीन मेरी टेक्निकल इंस्टीट्यूट के CEO कर्नल बाली सर और कर्नल वसंत बल्लेवार साहब को बोलूंगा कि थोड़े चंद शब्द Q&A के बारे में बताओ। बाली सर पहले और उसके बाद डीन साहब। बाली मेरे जनरल चौहान, ब्रिगेडियर भारद्वाज, जो दोनों इस समय जो है हमारे
सैन्य मुख्यालय की तरफ से आए हैं, कैप्टन डॉक्टर चितले, चेयरमैन, वाइस चांसलर साहब, पूरी पुम्बा की फैकल्टी और हमारे एक्स स्टूडेंट्स, आप सबकी लाइफ स्टोरी को देखने के बाद हम लोग बहुत प्रोत्साहित होते हैं। बाकी जो अतिथिगण हैं, आज मैं हिंदी में बात करने की कोशिश करूंगा। बाकी जो अतिथिगण हैं, मैं उनको थोड़ा QMTI के बारे में हल्का सा बताना चाहता हूँ। क्वीन मैरीज टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है, ये 103 साल पुराना एक इंस्टीट्यूशन है, जो कि 1917 में शुरू किया गया था। ये इंस्टीट्यूशन जो है हमारे देश में या शायद दुनिया में एक टोटली अद्भुत और अकेला इंस्टीट्यूट है, जिसको कि एक ट्रस्ट रन करता है। हम लोग एक पब्लिक ट्रस्ट हैं और हमारा रास्ता आर्मी के सर्विंग ऑफिसर्स के साथ भी रहता है और हमारे वेटरन्स के साथ भी रहता है। हमारे ट्रस्ट के अंदर जो है हम लोग 25 ट्रस्टी रहते हैं, जिसमें सर्विंग ऑफिसर्स भी रहते हैं और रिटायर्ड ऑफिसर्स भी रहते हैं। QMTI एक एनेबलिंग इंस्टीट्यूट है, जैसा कि सभी जवान जो हमारे एक्स स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बताया, कैप्टन चितले साहब ने बताया, हम लोग एक एनेबलिंग इंस्टीट्यूट है। एक्चुअली हम लोग जो ट्रेनिंग करवाते हैं, ये हम समझ के करवाते हैं कि हम एक उस एंटिटी से डील कर रहे हैं जो एक जवान एक समय पे बिल्कुल ही ओके था, यानी कि बिल्कुल फिट जवान था, और ऑल ऑफ ए सडन एक हादसे में, एक ऑपरेशन में या एक एनिमी एक्शन में दुश्मन की लड़ाई के साथ उसको जो है चोट लग गई। अभी उसकी एक टांग नहीं है या उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई है। अब वो जवान नॉट ओके समझता है अपने आप, उसके सामने बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। अगर वो शादीशुदा है तो अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचता है, अगर वो अकेला है तो ये सोचता है कि आगे मैं क्या करूंगा। उसको कुछ पता नहीं होता, क्योंकि उसने सिर्फ यूनिफॉर्म का काम सीखा होता है। जब ये हमारे पास आते हैं तो ये सभी जवान जो यहाँ उपस्थित हैं वो मेरे से एग्री करेंगे कि उनकी जो स्थिति होती है, मानसिक स्थिति काफी कमजोर होती है, क्योंकि उनको अपने भविष्य के बारे में मालूम नहीं होता। उनको ये भी पता नहीं होता कि हम जो इस इंस्टीट्यूट में आए हैं तो ये इंस्टीट्यूट जो है ये हमें कितना सक्षम बना दे। हम सक्षमता क्रिएट करने के लिए किसी भी एक इंस्टीट्यूट को करीबन 2 से 3 साल लगते हैं। अगर एक जवान जो कि फुल्ली फिट था और अब वो अनफिट है, उसके मेंटल एप्टीट्यूड को आगे बढ़ाने के लिए, उसको नॉट ओके से ओके तक पहुंचाने के लिए, और ओके करने के बाद उसको जीवन का एक नया रास्ता देने का काम QMTI हम लोग करते हैं। हमारे पास जो ट्रेनिंग होती है, ये अलग अलग किस्म की ट्रेनिंग हम करवाते हैं। इसके अंदर हम लोग जो है वो सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग करवाते हैं। हम समझते हैं कि जो जवान है वो 10th 12th पास है, उनको इंटरव्यू देना, बातचीत करना, अंग्रेजी में बात करना, इस किस्म की चीजों में उनको परेशानी आती है। तो सबसे पहले उनका हम सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करवाते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग का उनका कोर्स करवाते हैं। हम वो उस किस्म के कोर्स करवाते हैं जो कि विदेश जाने के लिए, जो अमेरिका और कनाडा जाने के लिए जो एल्टिस का कोर्स किया जाता है, ये हमारे स्टूडेंट कोर्स करते हैं। हम उनको बेसिक कंप्यूटर कोर्स सबको करवाते हैं। उसके बाद पुणे यूनिवर्सिटी से एक EDP कोर्स अलग से करवाते हैं, एंड उसके साथ ही साथ हम उनको ITI के वेरियस कोर्सेज करवाते हैं। और उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स जो हमारा रहता है वो है हमारा जो मैनेजमेंट कोर्स, जो कि पुणे यूनिवर्सिटी से पुम्बा की फैकल्टी ने इसको टेक ऑन किया है। जब एक स्टूडेंट हमारे यहाँ से पास आउट होता है तो उसके पास एक एनेबलमेंट का एक पूरा पैकेज होता है। ये एनेबल स्टूडेंट जो है, ये अगर चाहे तो गवर्नमेंट जॉब में जो 2% का कोटा है, रेलवेज के अंदर, डिफेंस के अंदर और एक्सेसरीज जॉब्स के अंदर, ये उसको उठाते हैं। ये फुल्ली फिट रहते हैं वो काम करने के लिए। अगर ये इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो इनका स्किल लेवल 4 या 5 होता है। तो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा जो है ये सर्टिफाइड कोर्सेज हैं। सो मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आप लोग QMTI के अंदर होने वाले कोर्सेज और जो होने वाली जो करवाइयां हैं उसका सब बहुत ज्यादा आपको प्रचार करना चाहिए। और ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर सब जगह फैल जाना चाहिए कि हम ये चाहते हैं
कि हमारे यहाँ पे जो जवान हमारे पास ट्रेनिंग करने आते हैं, उससे करीब 250 से 300 गुना जवान हर साल जो है वो डिसेबल होते हैं। अगर ये सारे जवान जिनकी डिसेबिलिटी जो है वो 40% से ऊपर है हमारे पास आए, तो हम उनको बढ़िया से स्किल करके, जैसे कि ये जवान लोग बता रहे हैं, हम उनको आगे निकाल पाएंगे। मैं ये भी बताना चाहता हूँ अंत में कि अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो हम डायरेक्ट प्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सारे जवान जो हैं वो सर्विंग सोल्जर्स रहते हैं, ये नौकरी कर रहे होते हैं और तनख्वाह मिलती है इनको फौज की, चाहे वो बीएसएफ का जवान हो, चाहे सीआरपीएफ का, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सभी का। तो इसीलिए हम उनको स्किल करते हैं, कुछ देर के लिए वापस यूनिट में जाते हैं और जाने के बाद वो रिटायर होते हैं, तो उसके बाद फिर वो जॉब शुरू कर देते हैं। हम उनकी उस जॉब प्लेसमेंट में भी मदद करते हैं। अंत में मैं पुम्बा का, कैप्टन चितले साहब का और जो हमारे मेजर जनरल साहब, ब्रिगेडियर साहब जो आर्मी हेडक्वार्टर से आए हैं, उन सब का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपना समय निकाला और हमारी जो क्यूएमटीआई में होने वाली जो प्रतिक्रियाएं हैं, कार्रवाइयां हैं और जो पुम्बा का जो अच्छा काम है, आपने जग जाहिर किया। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू कर्नल बाली। कर्नल वसंत बल्लेवार, स्वीट शॉर्ट, बिकॉज 2-4 और डीन साहब के बाद डॉक्टर अमर कृष्णा बात करेंगे 2-3 मिनट, और 2-3 अपने स्पीकर है डिस्टिंग्विश, प्लीज। या नमस्कार कैप्टन चितले सर, सुरभि जैन मैडम, कर्नल बाली सर, आर्मी हेडक्वार्टर से ज्वाइन किए अधिकारी, और सभी एक्स स्टूडेंट्स जिन्होंने आज अपना परिचय दिया, अपने वेंचर्स के बारे में बताया। और आज के इस प्रोग्राम में मेरे काफी जवान जो इस साल डायसन कोर्स में ज्वाइन हुए हैं, और काफी स्टूडेंट्स जो एनवायरनमेंट में ऑनलाइन ज्वाइन किए, अराउंड 30 स्टूडेंट्स आज के प्रोग्राम में ज्वाइन हुए हैं। और ये सभी इस बहुत अच्छे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और सक्सेस स्टोरी सुन रहे हैं। इसका बहुत बड़ा असर इन सब पर होने वाला है, और नेटवर्क के माध्यम से बाकी सभी स्टूडेंट्स, नॉट ओनली फ्रॉम आर्मी, जो भी डिसेबल्ड लोग हैं एनवायरनमेंट में अपने कंट्री में, सब सुनेंगे, उसका एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलने वाला है। मैं इस इंस्टीट्यूट को 2019 में ज्वाइन किया और तब से मैंने 3 बैचेस DISM की देखी है। एज ए साइकोलॉजिस्ट एंड डीन, मैं जब इन जवानों का इंटरव्यू लेता हूँ, जब वो आते हैं और मैं इनको काउंसलिंग करता हूँ अबाउट वेरियस कोर्सेज, इस इंस्टीट्यूट में क्या होगा और उनका आगे देखने का नजरिया क्या है जवानों का लाइफ की तरफ, मैं मोस्टली देखता हूँ कि जवानों का जो देखने का नजरिया होता है कि मैं कोई सिक्योरिटी एजेंसी ज्वाइन करूंगा, या कहीं छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, कोई शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट मिल जाए, या कहीं सबऑर्डिनेट जॉब मिल जाए कोई जगह। दैट इज व्हाट द फोकस जनरली हमारे जवान जब इंस्टीट्यूट में आते हैं वो देखते हैं। लेकिन ये एक बहुत अलग और अजूबा कोर्स जो डिजाइन किया है पुम्बा और पुणे यूनिवर्सिटी ने, मैं इस कोर्स को कोर्स के नजर से देखने के बजाय एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिसेबल्ड सोल्जर्स, उस नजरिए से मैंने इस कोर्स को देखा है, और उसका वो इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल कैपिटल ऑफ माइंड ऑफ ईच एंड एवरी सोल्जर, और उसका सेल्फ एस्टीम फैकल्टी, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इस कोर्स का, अलॉन्ग विथ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो इन्होंने ज्वाइन किया है। इट इज सच ए वंडरफुल कॉम्बिनेशन कि जवान का अपने लाइफ की तरफ देखने का नजरिया ये कोर्स चेंज करता है। जो जवान एक छोटी छोटी नौकरी के उद्देश्य से या किसी तरह अपनी जिंदगी बसर कर लो इस डिसेबिलिटी के साथ, वो सपना लेके आता है, जब यहाँ से जाता है पास आउट होके, उसके पास एक बहुत बड़ा सपनों का खजाना उसके दिल में होता है। और उसके उदाहरण आज के इस सेमिनार में, वेबिनार में हमने सबने देख लिया। ये बहुत कम है, 5-6 ही जवानों ने इसके बारे में बताया। ऐसे कई जवान हैं जिन्होंने बहुत अच्छा सक्सेसफुल लाइफ आगे गुजार रहे हैं, और मुझे यकीन है कि इस कोर्स जहां तक हो सके कंटिन्यू होना चाहिए। एंड नॉट ओनली फॉर डिसेबल्ड सोल्जर्स, आई विल रिकमेंड दिस कोर्स फॉर ऑल द सोल्जर्स हु आर गोइंग ऑन रिटायरमेंट फ्रॉम आर्मी। क्योंकि आपने आज की सेमिनार में देखा, एक प्रीतम सिंह ने जो अपनी बातें कही, राठौर ने बातें कही,
बहुत से जवानों ने अपने अनुभव बताए। ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का कोर्स है सभी जवानों के लिए, हाउ टू फेस लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट इन सिविल एनवायरनमेंट। I just want to add a few things here, Vasant. I would request Major General Chauhan and Brigadier Bhardwaj also कि जो हमारे जो एड ऑन कोर्सेज हैं, जैसे कि अभी ये पुम्बा का कोर्स है, मैनेजमेंट कोर्स, इसके अलावा सॉफ्ट स्किल, इंग्लिश स्पीकिंग, बेसिक कंप्यूटर, ईडीपी कैप्सूल, जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट का एक कैप्सूल अलग से है। ये सारे कैप्सूल्स जो है अगर हम लोग ऑफर करें टू द आर्मी, तो जो उनके रिटायरिंग जवान हैं वो हमारे यहाँ अपने अपने समय पे आके हमारे प्रोग्राम के मुताबिक ये कोर्स कर सकते हैं। आई थिंक दैट वुड बी अ गुड आइडिया। यस सर। सर कर्नल बाली सर, मैं और एक ऐड करना चाहता हूँ। कल ही एक वो जो अपने पास एक हार्दिक मैडम आई थी ना एग्रीकल्चर बोर्ड की जी, उन्होंने भी एक ऑफर दिया है कि 3 महीने का शॉर्ट प्रोग्राम गार्डनिंग और एग्रीकल्चर रिलेटेड हमें कोर्स शुरू कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी हमारे काफी जवान एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते हैं, तो हम देखते हैं अभी अगर कुछ कोलैबोरेशन हो जाए तो पीवीसी साहब भी सुन रहे हैं तो एक अच्छा प्रोग्राम हो जाएगा, ये समझता हूँ। यस सर, हम लोग इसके लिए ओपन है, वी आर वर्किंग ऑन इट, वी एक्चुअली वांट टू स्टार्ट फ्यू एग्रोवेट कोर्स हम करना चाहते हैं। और वैसे और एक बात, जैसे गोदरेज से साथ हमने प्रदीप भार्गव जी बोलेंगे उसके ऊपर, वो भी कोर्स हम जवानों को दे सकते हैं। तो मैं अभी Vasant, can I ask Amar sir to talk? Yes sir, I will just conclude sir. Also join. I will just I conclude want my Vikram Gokhale and Pradeep Bhargava also to comment. No? Yes sir. Please. So Thank I you will very just much. conclude sir. Thank you so much for giving this opportunity. Thank you. And we look forward to have additional help in other courses as Colonel Bali has mentioned. Amar, thank you sir. Dr. Amar, please, quickly. Dr. Amar. Yeah, just a minute. Thank you. Yeah. बहुत अच्छा लगा सबकी बातें सुन के, स्पेशली दी जवान्स पीतम, संदीप, अमरजीत, पुष्पा, राठौर, ज्योति, उनका कॉन्फिडेंस देख के और उनका सक्सेस सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार आया था QMT में जब मैं यूनिट को कमांड कर रहा था, 1 आर्मर्ड इंजीनियर रेजिमेंट को, और मेरा एक जवान का थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था लाइव माइन ट्रेनिंग में। तो फिर मैंने उसको भर्ती कराया था QMTI में 2002 में, और बहुत अच्छी सन से उसको बाद में कुछ उसने भी शुरू करा था, और वो बहुत अच्छा सुखी है अभी। और ये बहुत अच्छा लगा कि जो काम पुम्बा और QMTI इकट्ठे कर रहे हैं, उसका इतना सक्सेस है हर एक जवान में, और इतना कॉन्फिडेंस है हर एक जवान में, तो दैट इटसेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम्स of the dedication of these two organizations towards our disabled soldiers. And I'm sure with the vision of Dr. Chitle and the guidance from him, we can certainly go further and further ahead, as I'm listening to what all are the further plans. We have also tried to help out QMTI to a certain extent through a Rotary organization, to a very small extent, and there is a lot of scope. उसमें भी बहुत सारा स्कोप है जिससे हम हेल्प कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर इन द इयर्स टू कम वी विल डू मच मोर। इन द एंड आई वुड ओनली लाइक टू गिव अ वेरी large hearted congratulations to all who have been passing out from QMTI and who are doing so well. Best wishes to all of you, and do keep the confidence, and the discipline and culture of the armed forces intact in whatever you are doing. जो भी कुछ आप काम कर रहे हैं, जैसे काफी लोगों ने बताया भी है कि आर्मी का कल्चर हम छाती खोल के बोलते हैं कि yes, I am an ex-serviceman, and you get the respect for it. That was a very good impact that I found. Best wishes to everybody. Dr. Chitle sir, thank you very much for inviting me, and best wishes sir. Thank you sir. मैं सभी पार्टिसिपेंट को बताना चाहता हूँ कि हाल ही में अमर कृष्णा साहब ने डॉक्टरेट डिग्री पाया है सिम्बायोसिस से. Congratulations sir. Congrats. Dr. Saili Gankar, have you joined? Dr. Yes, Saili. yes sir, I'm sure. You can see me. Yeah, Yes, Dr. sir. Saili, quickly you can. Dr. Saili is the Vice Chancellor of D.Y. Patil University, and she is a qualified trainer of achievement motivation from Entrepreneurship Development Institute of India, Ahmedabad, and she is in our research group.
like Amar and Saili. Over to you, Dr. Saili. Dr. Saili. I think she's not in her office. Dr. Saili? If not, then we'll proceed. Now I will request Mr. Vikram Gokhale ji. Vikram Gokhale, sir. I think he joined. Yeah. I'm there. Sir, please. Can you hear me? Yeah. Good. पहले तो जितने सारे लोग यहाँ अभी ये सारी बातें सुन रहे हैं, कह रहे हैं, इंक्लूडिंग आवर वीसी कैप्टन चित्रे, जैन मैडम, उमरानी सर साहब, सब लोगों को लेकर और सारे अपने जवान और अधिकारी, इन सबको मेरा प्रणाम। मेरे पास 5-6 पॉइंट्स मैंने निकाले थे, उससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। प्लेसमेंट इन कॉरपोरेशन और सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, इसकी बात अभी नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक ये लोग काम कर रहे हैं, उनको तनख्वाह मिलती है, चाहे भी डिफरेंटली एबल्ड सोल्जर्स है, उनको अगर पगार मिलती है, तो उसके बारे में अभी बात नहीं करते हैं। Am I right? Yes, sir. Am I right? Yes, sir. Please. Yes, sir. Yes. हाँ। सेकंड पॉइंट ऐसा है कि I am trying to make an appeal to Builders Lobby in Pune to help the QMTI campus for the progress of QMTI campus, उसकी डेवलपमेंट के लिए वो मेरी कोशिश जारी है कि पूरी अपनी पूना की बिल्डर्स लॉबी है, उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कृपा करे और छोटी छोटी जो चीजें हैं वो हमारे QMTI के कैंपस में जिनकी जरूरत है उसके लिए काम करेंगे, तो हम उनका नाम वहां लिखेंगे कि इन लोगों ने यहाँ योगदान दिया है। तीसरा पॉइंट ऐसा है कि डिफरेंटली एबल्ड सोल्जर्स, इनके लिए रिजर्वेशन क्यों नहीं होता है? तो मुझे पता लगा, कैप्टन साहब ने, चितले साहब ने बताया कि 3.5% कुछ ये है आरक्षण है। Am I right or wrong? I don't know. हाँ, 3% आरक्षण में डिसेबल एक सर्विसमैन आते हैं, ऐसे में। हाँ, तो ये 3% का और क्यों ना बढ़ाया जाए, इसके बारे में गवर्नमेंट से बात करनी होगी, जिसमें मैं इनिशिएटिव ले सकता हूं। बट वी नीड अ ग्रुप ऑफ पीपल टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट। प्रेशराइज मतलब नॉट इन डिफरेंट वे, टू रिक्वेस्ट देम। चौथी बात यह है कि सारे लोग दुनिया में, हमारे मुल्क में सब लोग आरक्षण मांगते हैं, सब लोग। तो ये 3% का जो है 5%, कम से कम 5% करें, ये एक हो सकता है। एक और बात मैं ऐसे जाते जाते बोलता हूं, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी एनीबडी। बाकी सारे लोग आरक्षण मांगते हैं, व्हाई दे कैनॉट गिव 1% फ्रॉम देयर फैमिली, 1% to Air Force or military or Navy. Why? Think about it. Think about it. Then I am requesting the university to approach government for this particular topics. जो के गवर्नमेंट के हाथों में है वो हो सकता है, तो अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज अगर कर सकती है तो यूनिवर्सिटीज करें। मैं वीसी साहब को और सबको मैं दरख्वास्त करता हूं, कैप्टन साहब आपको भी, आपके साथ मैं भी आऊंगा मंत्रालय में, और जितना हो, यू नो इट वेरी वेल, बाली साहब भी जानते हैं, बल्लेवार साहब भी जानते हैं, इससे पहले जितने लोग आए वो सब मुझे जानते हैं। आई एम एसोसिएटेड विद QMTI फॉर द लास्ट more than 40 years. सही बात। So we have to do this upliftment of our soldiers. We have to work for them. Finally, मैं ये कहूँगा कि it's an appeal to, are we going to be on the YouTube for this? We'll try to put it, sir, on YouTube. Please. Yeah.
मेरा ये मानना रिकॉर्ड कर रहे हैं है हम, कि we are recording, we'll do that. गुड मेरा ये मानना है कि सभी लोगों से प्रार्थना है कि इस मुल्क का पहला जो आदमी है वो सोल्जर है, दूसरा आदमी है हमारा फार्मर, उसके बाद हम सारे लोग हैं। सोल्जर नंबर 1, फिर चाहे किसी भी ब्रांच का हो, ही इज नंबर 1। वो उधर है इसलिए हम लोग इधर हैं, वो लोग हैं इसलिए फार्मर्स हैं, फार्मर्स है इसलिए हम सारे लोग हैं। तो इनके लिए एक जनरल अपील टू जनरल पब्लिक के हो सके जब हो सके तो पैसा बचा के अगर QMTI को वो धनराशि डोनेट करे तो बहुत मेहरबानी होगी, ऐसा मुझे लगता है। दिस इज एन अपील। और सिर्फ काम पैसों से नहीं होता है, ये मैं जानता हूँ, बाली साहब भी जानते हैं, बल्लेवर साहब भी जानते हैं, कैप्टन साहब चित्रे साहब भी जानते हैं कि बोलना, कहना, जेब से पैसे निकाल के चेक देना ये आसान है। टू गिव सम टाइम टू आवर सोल्जर्स टू स्पेयर एटलीस्ट हाफ एन आवर इन 1 month, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे सारे ये जो भाई हैं इनको कम से कम आधा घंटा तो 1 महीने में हम दे सकते हैं। अपने बाल बच्चों के लेके जाइए, देखिए वो कैसे क्या करते हैं, कैसे सीखते हैं, किस हालात में सीखते हैं, ये होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और आई विल नॉट लाइक द आइडिया to address my soldiers as disabled soldiers. They are differently able soldiers. Sure. Because I have seen people who are doing course. Hello, can you hear me? Yeah. Yes. I have personally visited many times. Captain Chitra knows, and all these CEOs or chief people in QMTI, they know very well that whenever I get time, I go to meet the soldiers. I try to be with them for at least half an hour, and then I leave. Thank you, sir. So I wish you all the best. Wish my all soldiers the best, just the best, and the best to QMTI, to university, to people like Chitra Sahab, Jain Madam, Umranikar Sahab, VC साहब, सब लोगों को, और जितने सारे लोग मुझे सुन रहे हैं उनको भी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। Thank you, Vikram ji. Thank you very much. Now, welcome. I request Dr. Saidi quickly give your views, and then Mr. Pradeep Bhargava will talk, and then we'll conclude because we don't have any time for question answer. Fine. Saili sir, Saili madam. Yeah. Yes. Thank you so much, Professor Dr. Captain CM Chitra sir. Honorable Pradeep Bhargava sir. President, ex-president of. Can you? Hello. आवाज नहीं है थे. No. Can you hear Sally, me? you mute your video. Sally, mute your video, please. You mute your video. Check it now. Yes. Can I? Quick, yeah. Okay. Yes, So, now. thank you. Okay, thank you so much. Very good evening to all of you. Honorable Dr. CM Chitra sir, Pradeep Bhargava sir, Dr. Surbhi Jain ma'am, and all the soldiers of this country. I think a wonderful initiative which has been started by QMTI. And I always feel that because I have conducted almost 6 entrepreneurship development program for ex-servicemen, and I've seen that how they started their businesses and they have really grown to the next level. अगर हम अभी देखते हैं तो we can see it very well that there are so many opportunities. So I would like to definitely support Captain CM Chitra sir and University of Pune. Being a trainer for entrepreneurship. Entrepreneurship is fun. It's really great thing which you can really start. There are immense amount of opportunities, and today we have seen it due to the pandemic. The work from home concept has really grown to the different level, and that is creating number of opportunities. One has to really quickly learn few technical things that will help you a lot.
right from agriculture to the different sectors. More than 32 sectors are there in this country, which have immense potential, and I think we all can do it. For conducting these entrepreneurship development program, and especially for achievement motivation training program, I would like to definitely come interact with all of you. I can help you that how one can select the business ideas, finalize those, and convert those into enterprises or the new type of venture. Country needs Startup India, and if you look at it, there are so many projects which are coming up, which have been announced by the government. Even the still I remember Simplex and other schemes are available for the ex-servicemen and soldiers, can be explored very positively, and that can help you to generate the employment, self-employment for yourself, and you can become an entrepreneur. So entrepreneurship is basically a need for the achievement, and that is what I always talk about it. I always feel that this word is from Sanskrit, that is anta prerit, right? So the one has to be self-motivated from within, which will definitely help you to create a wonderful venture under the guidance of Captain C.M. Chitale, Professor Dr. Surabhi Jain. And always I'm there. Any help it's required, I would like to extend that support. DY Patil University will also extend to the support in terms of research and development. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, Sally. Thank you very much for joining us. Now I request Mr. Bhargavji. तो मैं थैंक यू सो मच सर. सिविल और डिफेंस टीम वाले सब महानुभावों को बहुत बहुत प्रणाम. आभारी हूं मैं आपका. मेरे कोई क्वालिफिकेशन नहीं बनता है इस मौके पे बोलने का, पर आभारी हूं आपका चित्ते सर कि आपने मुझे मौका दिया. कल बाली, कल वसंत, आपको याद होगा मैं एक बार इंस्टीट्यूट आया था, मौका था. उस दिन आप लोगों ने शुरू में कहा था कि मैं अपने कुछ अनुभव से कुछ लर्निंग बताऊं, पर मैं सच्ची बताऊं उस दिन मैं सीख के आया, सिखाने नहीं गया था, सीख के आया. आज भी मुझे वैसे ही महसूस हो रहा है कि मैं सीख रहा हूं, और ये सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है. और दूसरा बात मैं कहना चाहता हूं कि फौजी लोगों को लेते जब भी संदर्भ में बात होती है, बैटलफील्ड की हो कि स्पोर्ट्स फील्ड की हो, कि जैसे आज बात हो रही है, भावुकता आ जाती है, भावनाएं आ जाती हैं. मैटर ऑफ फैक्ट तो होता है, वह भावनाएं इसलिए आ जाती हैं कि आप लोगों का जो योगदान है, जो हिम्मत है, जो भरोसा है, जो जोश है, जो पॉजिटिविटी है, आपके हर चाल चलन में आती है. वो इस मौके पे भी बहुत उभर के आई है. जैसे कि हमने सुना प्रीतम जी का, संदीप का, अमरजीत का, कुशवाहा साहब का, राठौड़ साहब का, ज्योति का, एक एक मिसाल है जिसको देख के हर लोगों को सीखने को मिलता है. तो मैं इस बात का कहना चाहता हूं कि ये चीज आजकल इन्फेक्शंस की बात होती है ना, जैसे कोरोना फैल रहा है, ये इन्फेक्शन हमको स्प्रेड करना है, ये पॉजिटिविटी हमको स्प्रेड करनी है, उसमें बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है. मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से आ रहा हूं, और हम लोग, मैं खाली इतना से कहना चाहता हूं, हम लोग योगदान देते हैं, ग्रोथ का देते हैं, एम्प्लॉयमेंट का देते हैं, पर हम लोग के बहुत नखरे होते हैं. हमको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमको इंसेंटिव चाहिए, हमको दुनिया भर का सपोर्ट चाहिए. फिर हम कहते हैं कि हमको अब हम करने जैसे बड़ा एहसान कर रहे हो. आप लोगों ने जो करके दिखाया है, बिना इन सब सहूलियत के भी, दुनिया भर के परेशानी होने के बाद जो अब 6 कहानियां सुनने को मिली, उससे दूसरी प्रेरणा मिल रही है. क्रिकेट की एनालॉजी दूं, आप लोग बैकफुट से स्टार्ट करते हैं. क्यों बैकफुट? क्योंकि आपने वो पैर देश के लिए कहीं जाके कुछ ना कुछ आपको तकलीफ दी है, अपने आप को, देश को बचाने के लिए. पर जब आप आए क्रीज में आके, तो यू गेटिंग आउट ऑफ द क्रीज, फ्रंट फुट से स्ट्रेट बैटिंग कर रहे हैं. जो एक इंसान परिस्थितियों के कारण कुछ हद तक मजबूर हो सकता है, वो आज आगे आके कर रहा है. आपकी ये सेकेंड इनिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है. अलग पिच है, अलग रूल्स हैं, अलग प्लेयर्स हैं, और उस सेकेंड इनिंग्स में भी आप लोग इतना उत्साह के संग इतने कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है. सर मेंशन जस्ट नाउ कि इनको डिफरेंटली एबल्ड बोलना चाहिए. मैं तो एक स्टेप आके कहूंगा, यू लोग यूज योर एबिलिटी डिफरेंटली. मतलब आप डिसेबल तो है ही नहीं, पर आप एबिलिटी को डिफरेंटली यूज कर रहे हैं. एंड क्या लर्निंग्स, मेरे को आज कुछ बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सिखाया. आप लोगों का कहना कि बिजनेस को इंटेग्रिटी के संग करना, प्रीतम जो बोले, और आपने ये भी बताया कि बाकी माहौल में ईमानदारी और इंटेग्रिटी इतने ज्यादा नहीं है जितने कि आप लोग लाते हैं. थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस प्योरिटी इन द बिजनेस. आप लोगों ने क्रिएटिविटी, सपनों की बात की,
राठौड़ जी ने होटल को छोड़ के फार्मिंग दिया, डोंट गिव अप, आगे चलिए। ज्योति ने बोला सस्टेनेबिलिटी करने के लिए आगे करेंगे, और इन सब चीजों का जो एक मिसाल दिया आपने, वो सुरभि, these are all learnings for us in management, applicable to many more sectors of society, not just for Gs. So I would just once again thank everybody and bless each one of you for what you're doing. And Chitale sir, grateful to you. And of course, this institution is something which we need to be, let's say, more vocal about it. Let more people know about it. Let more people engage. Thank you so much. God bless you all. Sir, thank you very much. मैं अभी उमरानी सर साहब से बात करने से पहले मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ उनसे पहले बुलाने से। काफी साल पहले हमने यूनिवर्सिटी में सोचा था कि एक इंस्टीट्यूशन या एक डिपार्टमेंट खोले कि जहाँ जवानों का ट्रेनिंग, जवान की फैमिली का ट्रेनिंग करे। और वो बात 10 साल पहले की है, जब जनरल मोहंती आर्मी कमांडर थे ट्रेनिंग कमांड में। आर्मी ने हमको जगह देने की सोचा भी था, लेकिन उस टाइम वो सुखना बन गया, क्योंकि नरेंद्र जाधव साहब का ये सपना था कि अपन एक इंस्टीट्यूट खोलेंगे जैसे सिम्बायोसिस ने बोला है, लेकिन हम जवानों का ट्रेनिंग करेंगे। वो मेरा सपना अधूरा रह गया है, कभी बात करेंगे इसके बारे में। और मैं चाहता हूँ आज की भी अथॉरिटीज यूनिवर्सिटी के अगर ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट या विभाग यूनिवर्सिटी में शुरू करे कि जो ट्रेनिंग आज आवश्यक है जवानों के लिए, एक सर्विसमैन के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए, वीर नारी के लिए, अगर वो हो सके तो हम करने की कोशिश करेंगे। ये मेरा वादा है। ऑफ कोर्स मेरे अथॉरिटीज भी उसमें देखेंगे। तो मैं अभी दरख्वास्त करता हूँ कि उमरानी सर, प्रोफेसर उमरानी, हाँ सर, प्लीज गिव योर रिमार्क्स कंक्लूडिंग। आता सध्या मग आपण एवढं द्यायचं का मग हे प्लीज अनम्यूट योर माइक प्लीज। हे तर काय म्हणलं माहिती का, सर त्यावेळेस कार्यकर्ता गुड इव्हनिंग टू ऑल. कॅप्टन चितळे सर, त्यांनीच तपासलं असेल ना कार्यभार, कॉलेजकडनं त्यांच्याकडे गेला असेल. भार्गव सर, गोखले सर, डॉक्टर सायली गणकर मॅडम, ते आहेच आहे ना विषय की त्यांच्या कार्यभार, all the respected resource persons, guests, mentors, and today's participants for presenting their success stories in their life. Basically, I'm very, very happy to listen to all the efforts and success stories of the soldier entrepreneurs. I felt very, very proud of all of them, forgetting all the crises and difficulties, even personal issues, whether it is economical or physical. They all have shown their ample courage and confidence. I am of the opinion that training given by QMTI and UBA has been highly and hugely instrumental to provide them much required confidence in order to start their own businesses. Basically, as a teacher of commerce, I believe that business is basically a mindset. Once we decide to embark upon the journey of any small or tiny business, one need to have a unique mindset. Mindset of taking risk, number one. Mindset of taking huge efforts.
mindset of gaining new, fresh knowledge of the market, of the customers, customer behavior. Number 4, one must have a robust financial knowledge. Unless and until you gain the financial knowledge, one cannot run the show of any business. Finance is a crux. Therefore, that type of literacy has to be created through the training. I am confident that being ex-director of Pumba, Chitade sir might have done all the efforts and taken endeavors to bring much required financial literacy among the soldiers. Normally, Indians are not having that type of financial literacy and education. And traditionally, we say that money is not important. What is important is value. That is right. But as a teacher of commerce, I believe that value as well as money, both are important. As an individual, as a society, if you do not possess financial position, economical power, nobody will listen to you. In your pocket, economic power has to be there. And I request all the soldiers' friends, please, simultaneously, I will tell you unequivocally, money is equally important. Money is equally important. Therefore, my appeal is that please try to understand how to maintain the accounts. Proper accounting. Nowadays, technology is handy for the purpose of keeping the accounts. Even in the villages nowadays, people say that in case of economic difficulty, easily they say that no, nowadays my fund flow is very, very weak. See how language changes. People do not say that I'm in financial difficulty. They say my fund flow is weak. And nowadays my balance sheet is not in good shape. So this is the language even villagers speak today. That type of terminology, that type of ecosystem somewhere has to be inculcated, whether it is small or big business. So accounting, finance, and at the same time, marketing, customers' behavior, what customer needs. In today's marketing terminology, it is said that design thinking is of very much importance. Design thinking means the end user, his requirements, his needs, his attitudes, and his purchasing power. All those things have to be taken into account in designing any product or any service. Therefore, build to specification, BTS. That BTS concept has to be understood very well by the entrepreneurs. Anyway, I am very, very happy. Once again, capacity building is happening in QMTI, as rightly pointed out and uttered by Vikram Gokhale sir. We are really proud of our soldiers and farmers. Because of them, we are safe today. Our borders and even internal security is highly dependent on the courage, confidence, and efforts of the soldiers. And whatever food, nutrients we are getting in the villages and cities only because of the efforts of the farmers.
Therefore, a university is always at the forefront to provide all type of training support, capacity building efforts. Our teachers or officers are always there to support you in all your future endeavors. On behalf of Savitribai Phule Pune University, on behalf of Vice Chancellor, I assure that in future also, university will extend olive branch to QMTI and all the soldier friends who are very, very keen in training as far as entrepreneurship is concerned. Once again, I appreciate and admire the efforts taken by Dr. Chitale sir and his team. Bhargav sir is there in order to provide the mentoring, all type of guidance as an industry person, having huge knowledge and experience. Once again, I'm thankful to you for listening to my views. Thank you so very much. All the best. All the best. Thank you. Gaurav? Yes, sir. Before you give Thanksgiving, let me mention the special presence of Brigadier Vikas Bharadwaj, who is Brigadier, Department of Indian Army Veterans, and Major General A.S. Chavan, Managing Director, Army Welfare Placement Organization. They have joined this particular program on when they contacted me. I'm very happy that Army Headquarters has taken a cognizance of this particular webinar. And I'm sure we will associate further also. Thank you, Brigadier Bharadwaj and General Chavan. Over to you, Gaurav, for thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. I take this opportunity to present the vote of thanks. It was a wonderful. Just a minute. Yes. Brigadier Bharadwaj would like to say something, 2 words, something, or no? Sir, I was just wanting to convey my gratitude to you and to the entire team who's working with such passion to train the specially able soldiers so that they're enabled to lead a decent, respectful life post-retirement. Thank you. And hearing to the success stories and the kind of commitment the soldiers have shown, and in their journey towards becoming self-reliant, they have not lost sight of the ethos and the character of the army that they've imbibed. So it makes me feel very proud of them and makes me feel very proud as a soldier that they continue to take pride in uniform and they continue to uphold the ethos. Can we? And sir, special compliments to you and your team for enabling them in their journey, and as a result of which they feel themselves so empowered and that they have such kind of immense self-worth. Congratulations to you and your team, sir. So can we see you in a uniform? Just adjust the camera. Sir, well, that's something that I should not be doing on social media platforms, sir. Okay. No issue. Gaurav, please. Thank you, sir. Thanks all the dignitaries and speakers who've come today. It was a wonderful event, this online session, this gathering of renowned people, speakers, army people. This event was a wonderful event, a good learning. We hope to meet all of you face to face once the pandemic is over. I conclude, give my vote of thanks. Thank you so much. Can you take a screenshot quickly? Can you? Yes, sir. Just 1 minute. Please ask everybody to those who on are the present, cameras, please. At least all speakers, camera on, please. Quickly, guys. Just a minute. And I think you recorded this session, no? Yes, sir. That's good. Yes, 1 minute. And thank you to you also, because you keep on helping me. No, my pleasure. Sir. Yeah. Thank you so much. The snap has been taken. Thank you so much. Okay, thank you all. Thank you, Pradeep. Thank you. Chalo, thanks. Unkar mala. Thanks.